Good morning, students. Good morning, ma'am. Okay, so let's start. Good morning. So let's start today's class. What we have seen yesterday? Yes, assessment of heart. Then, yes, breast and chest. Assessment of musculoskeletal system. Online students? Yes. Auxiliary lymph nodes. Okay. Okay. So let's do a quick revision of our previous class. Yesterday we have completed assessment of heart, breast and chest, abdomen, and musculoskeletal system. So, what techniques you will use in assessment of heart? All four techniques, which are they in sequence? Online students? Which are they? Which techniques you will use in assessment of heart? Inspection, palpation, Inspection, palpation, percussion, Percussion. auscultation. Inspection, palpation, percussion, and auscultation. So Auscultation. first we will collect the subjective data from the patient, and then we will collect the objective data by our own. We cannot ask the patient about the objective data. First, we will inspect the chest. Is there any pulsation or is there any abnormality in the chest? Then we will palpate. Apical pulse we can palpate, but at the apical center we cannot palpate the pulse other anywhere else on the chest. Then percussion. Percussion, the normal percussion of the heart is, what is the normal percussion of heart? How you will write if there is a normal percussion? Dullness. Dullness, yes. And what is the normal percussion of lungs? Resonance. Resonance. So whenever in question, you will be provided information like there is resonance over the percussion on the heart. So there is something abnormal. So you have to understand that dullness is noted over the heart. If there is no dullness, then it is something abnormal. Auscultation. What are the 5 points for auscultation? Tell me in the sequence. Which 5 points are there for auscultation? First is aortic, then aortic, pulmonic, then F point, pulmonic, Erb's point. Erb's point, then tricuspid, and mitral. tricuspid and mitral. Yes, and you have to know that second right intercostal space, then second left intercostal space, third, fourth, and fifth mid clavicular. That is not intercostal space. Yes, so this is so simple to remember. Then we have to assess the sound, heart sound. The normal heart sounds are S1 and S2. Yes, that is lub and dub. If there is S3, S4, it indicates something is abnormal. If there is murmur, it also indicates something is abnormal. So there are gradings for the murmur. How many grades are there? Total 6 grades are there. So what is the grade 3 stands for? Loud and moderate. Yes, loud and moderate in intensity. The intensity is not very much. So that is loud and moderate intensity. What is the grade 6? Extremely loud. Extremely loud. Yes, it is extremely loud. It is heard with the stethoscope above the chest. If you are not auscultating over the heart, above the chest, you can also auscultate the murmur sound. That is that much loud. The intensity is so severe. And it is also accompanied by palpable thrill. You can also palpate the thrill over the chest. What is grade 1? Very faint. Very faint. Yes, easily it cannot be auscultated.
जो भी लोगों को ज्यादा प्रैक्टिस होगी उनको ही पता चलेगा कि देर इज वेरी फेंट मर्मर प्रेजेंट ओवर देयर। अगर आप फर्स्ट सेकेंड टाइम पहली बार कर रहे हो तो आपको आइडेंटिफाई नहीं होगा कि देर इज मर्मर साउंड। व्हाट इज ग्रेड 5? Very It is very loud sound. also palpable to 3. Yes, we can also palpate the Audible. tree, and it is audible through the stethoscope partially of the gland chest. मतलब हार्ट की थोड़ी साइड्स में भी आपको सुनाई देगा वो मर्मर साउंड while you are auscultating, not only over the heart. What is grade 2? Faint but recognize કરી શકાય. Yes, it is faint. बहुत ज्यादा loud sound नहीं है. The sound is very faint, but you can recognize there is something abnormal sound coming while auscultating the heart. And what is grade 4? Yes, the murmur sound is very loud, and you can also palpate the string, but you cannot auscultate that sound other than the heart. आप हार्ट की साइड्स में या अपर चेस्ट में कहीं पे भी ऑस्कल्टेट नहीं कर पाओगे. When you are auscultating on the heart, you can auscultate the murmur sound, that is some loud sound, and also you can palpate the string. Okay, then you have to assess the peripheral vascular system. In that, you have to assess all the arteries for the pulse, all the location of the arteries. Then you have to also assess the skin and the nails where there is diminished blood flow. The skin will become Cool and cool and clammy skin, and the nail beds can become cyanosed. Yes, and you have to also check for the edema. Okay, if you are not auscultating the, if you are not palpating the pulse, so you can also use one device, that is ultrasonic stethoscope. Okay. Yes, that's it. What is the client teaching you will give? Yes, we will advise the client to do some lifestyle modification. Yes, physical exercise, examination and exercise is also important there. Yes, we will advise the patient to report any abnormality to the PHCP. What type of advice we can give to the patient for the diet or nutrition? Okay, that are healthy. What foods the clients have to avoid? Which type of food the clients have to avoid? high High sodium. cholesterol ખાવાનું, sodium નહીં ખાવાનું. Yes, high sodium diet avoid, and high fat Carb. diet. Yes, carbohydrate, that is for the glucose. High carbohydrate, high sodium, and high fat diet. The patient has to avoid all these things. So this is the common sense. जब भी आपको क्वेश्चन आपको दिया गया होगा रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये फूड से ये प्रॉब्लम हो सकता है. दैट इज द कॉमन थिंग. सो you can also give such advice to the patient. Now the grading of pulses. How many grades are there? Total 5 grades are there. Okay. +4 to 0. So 0, +1, +2, +3, +4. What is the normal grading? +2. +2, that is the normal. Normal and easily palpable pulse. That is palpated in the normal healthy individual. What if there is a +4 grading is written in examination? So what you have to interpret? Strong and bounding pulse. Strong and bounding pulse. If there is written like the patient's having weak and very barely palpable pulse, what is the grade? +1. Okay. For +3, Increased pulses. Full pulse increased. yes, increased and full pulse. And what for 0 grade? There is absent, Absent, No. not palpable. not palpable pulse. There is no pulse at all. So that is grade 0. Then we have to assessment breast. We have to do assessment of breast or chest. So you will ask for subjective data to the female. In objective data, which techniques you will use? Inspection and palpation. Palpation only. Yes. So for inspection, how you will inspect? Yes. 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 Online students? Raise While- above head. Patient ને હાથ ઉપર કરાવી દેવાનું. Yes. First of all, we will ask the patient to raise their hand. Then second thing, how you can inspect?
હાથને હિપથી અગેન્સ્ટ લઈ જવાનો. Yes, hands behind the hips. So पीछे हाथ करके ऐसे पेशेंट को चेस्ट एक्सपोज करनी है. और थर्ड पोजीशन में कैसे हम चेक कर सकते हैं? पेशेंट को साइड्स में, दोनों साइड्स में हैंड स्ट्रेट करने हैं एंड पेशेंट हैज टू लीन फॉरवर्ड, थोड़ा बैंड होना है आगे की तरफ. एंड देन यू हैव टू जस्ट सिंपली इंस्पेक्ट. You don't have to touch the breast right now. While you are doing palpation, at that time you have to touch the breast. So palpation में आप पेशेंट को कौन सी पोजीशन दोगे? supine. Supine position, yes. And by after giving supine position, you have to palpate whole breast in a symmetrical manner. So कोई भी point आपसे छूट ना जाए. And you have to palpate the whole breast and its tail. Yes, which is extended towards the axilla. So tail भी आपको palpate करनी है. You cannot only palpate the breast. आपको उसका tail भी palpate करना होगा. And after completion of examination of breast, you have to move towards the axillary lymph nodes. You have to check the axillary lymph nodes. In axillary lymph nodes, first you will inspect. Is there any abnormality you can see? Then you have to do the palpation. Palpation के लिए कैसे करोगे आप? How you have to palpate the axilla? Yes. Okay, online students. Okay. Fingerprints से gently press down करवाना. Rolling soft tissue. But how, मतलब what type of position you will give to the patient for palpation? आप कैसे पोजीशन डायरेक्टली ऐसे बोल दोगे कि हाँ हाथ ऊपर कर दो मैं पाल्पेट कर दूं ऐसे? Flexed position. Okay, we will ask the patient to flex their hand. First वो patient ऐसे hand flex करेगा. Then we have to hold the patient hand like this. हमें abduct करना है, सॉरी adduction करना होगा. जो आर्म एरिया है वहां से हाथ ऊपर ले जाना है और हमें पकड़ के रखना है. पेशेंट ऐसे बहुत देर तक ऐसे पकड़ के होल्ड करके नहीं रख पाएगा. सो विथ वन हैंड वी हैव टू होल्ड द पेशेंट्स हैंड एंड जो फ्री हैंड है उससे हमें पाल्पेशन करना है. कैन यू फील द लिम्फ नोड्स? पाल्पेट कर सकते हो आप? No. No. नो. इफ इट इज पाल्पेबल then Not enlargement. yes, there is enlargement or swelling of the lymph nodes. So you have to do like this. Client teaching हम क्या दोगे पेशेंट को आफ्टर ब्रेस्ट assessment? Monthly breast self examination. Yes, we will advise the patient importance of breast self examination and we will also teach how to do the breast self examination. Then If lumps and mass yes, occur, the PHCP ने inform करा. yes, पेशेंट को अगर लंप और मास फील होता है तो वो पीएचसी को तुरंत इन्फॉर्म करे. इफ देयर इज एनी रिस्क तो हम पेशेंट को ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेगुलर एग्जामिनेशन कराओ, मैमोग्राम्स भी करवाओ, बट एज प्रिस्क्राइब. ऐसे खुद से ही मैमोग्राम्स नहीं करवा सकते. डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करते हैं तो रेगुलरली वो करवाना चाहिए. So this is the client teaching you will give to the patient. Next is assessment of abdomen. First आप subjective data में client से data information निकालोगे, then objective data. Which techniques you will use for the objective data? In sequence. Online students? Inspection, Inspection, auscultation, percussion and palpation. percussion, and palpation. Inspection, auscultation, percussion, and palpation. Remember this sequence. It is given in the red point. So that's why its sequence is very important. For assessment of abdomen and for assessment of all other organs, you have to follow the sequence. Okay, you cannot randomly do the inspection, palpation, percussion, and not like that. You have to follow the sequence. Before doing examination of the abdomen, what key points you have to remember? Empty Yes. bladder. Bladder should be emptied. If patient has not emptied their bladder, we have to tell the patient to go and empty their bladder. Then Painful And abdominal. piece of stethoscope should be warm. yes, hands should be warmed after hand washing and the diaphragm portion of the stethoscope should also be warmed. Then
यहाँ पेनफुल पेन का एरिया जो जो है है लास्ट इलास्ट एग्जाम इलास्ट हुआ है। जो पेशेंट को जहां पर पेशेंट पहले ही बोलेगा कि मुझे यहाँ यहाँ पेन हो रहा है, सो वो एरिया लास्ट में एग्जामिन करो, पहले से एग्जामिन कर दोगे तो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। सो रिमेम्बर दिस पॉइंट्स। नेक्स्ट फर्स्ट इज इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में सिर्फ आपको देखना है एब्डोमेन का शेप कैसा है, सिमेट्री कैसी है, उसका अम्बिलिकस कैसा है, स्किन कैसी है, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू जस्ट सी। पल्सेशंस आपको दिख रहे हैं कि नहीं वो आपको देखना है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रही है एब्डोमेन पे कि नहीं वो सब आपको देखना है। Nothing now you can do, you have to just see. Next is auscultation. Auscultation, you will do the auscultation over all Right. four quadrants. And where is the best sound heard? That is the Right lower right quadrant. lower right quadrant. lower quadrant. Yes, you have to do the auscultation in all four quadrants. But अच्छा sound कहाँ पर आएगा? First, so that is right lower quadrant. और आपको assessment vowel sounds auscultate करने के बाद आप कैसे लिख सकते हो? What are the three possibilities? Yes. Yes. Online students, what are the possibilities? Patient को क्या हो सकता है? आप vowel sound auscultate करोगे, so it could be hypoactive, हाइपोएक्टिव Hypoactive or हाइपरएक्टिव hyperactive. hyperactive and normal. Hyperactive को दूसरी लैंग्वेज में और उसका अदर टर्मिनोलॉजी क्या है? borborygmus, Borborygmus. Okay. It could be absent vowel sound also. ऐसा नहीं है कि hypoactive हो या absent भी हो सकता है after surgery. We know कि अगर vowel sound आपको auscultate होगे तभी हम client को food provide करते हैं, NBM break करते हैं. If it is there is no any vowel sounds, we cannot provide the food to the patient. So there might be absent vowel sound. So आप absent vowel sound है ऐसा कैसे decision लोगे? You have to wait for the 5 minutes. Yes, because there are irregular vowel movements. So you have to wait for the 5 minutes. You have to frequently auscultate in each and every quadrant for 5 minutes. And then you can take the decision there is absent vowel sound. It might be there is hypoactive vowel sounds, but you cannot directly write that there are absent vowel sounds. Percussion. Percussion means percussion आप कैसे करोगे? In all four quadrants? Yes. What is the normal sound of percussion over abdomen? dullness, इम्पेनिंग Training. Over liver and spleen? Dullness. There is a dullness. Okay. Yes. And what about pain over the 12th rib? What is that? post-vertebral, पोस्टोवर्टिब्रल एंगल Tenderness. Yes. You have to also do percussion over the 12th rib, where is the kidney located. And if the patient feels pain or there is a tenderness, it is called as costovertebral tenderness. In examination, you will be provided that the patient is, while doing the percussion, we have identified the patient is experiencing costovertebral tenderness. So you have to understand what is the terminology. Palpation. Palpation you have to do in all four quadrants. You can do palpation like first, what type of palpation you will do? Light palpation and then deep Deep palpation, deep palpation. If the patient is experiencing pain in the left upper quadrant, what you will do? First, you will do the light palpation in remaining three quadrants. Then you will do deep palpation in remaining three quadrants. Then you will go for the light palpation in left upper quadrant and deep palpation in left upper quadrant. Understood? Yes. Okay. Then client teaching. What type of client teaching you will give to the patient? Yes, regular use of laxatives. Sometimes occasionally they can use. Then, yes, advise the patient to eat well-balanced diet. obesity should be prevented, Yes, do lifestyle modification, avoid obesity, avoid spicy food that can cause gastric irritation, fatty foods that can also lead to gastric irritation. Then, કોઈ બી એવું લાઇફસ્ટાઇલ બિયર હોય જેનાથી ગેસ્ટ્રિક ઇરિટેશન થતું હોય એ અવોઇડ કરવાનું. yes, avoid all that things. And regular examination is also important. We have to also advise this, and we have to advise the patient. If you can identify any GI problems, you have to report the PSCP or gastroenterologist.
Next is musculoskeletal system. In subjective data, you will ask any question related to musculoskeletal system to the patient. Then you will take the objective data. Which techniques you will use? Inspection Inspection and and palpation. Inspection and palpation. In inspection, you have to just check the gait and posture. What is the gait of the patient? What is the posture of the patient? What are abnormal curvature? Which are there? Lordosis, kyphosis and scoliosis. Yes. Patient की अगर spine normal नहीं है, तो there are 3 abnormal curvatures of the spine. That is lordosis, kyphosis, scoliosis. What is lordosis? Curvature towards the abdomen. Yes, curvature towards the abdomen. जो lumbar spine है, वो abdomen की तरफ ज्यादा protrude हो गई है. So patient sway back हो जाएगा. तो उसको sway back posture भी बोल सकते हैं हम. Kyphosis में क्या होगा? Yes. The thoracic spine will will come outward. वो अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ होगा. So patient bend down हो जाएगा. उसे hunchback posture भी बोलते हैं. Then what is scoliosis? Lateral side. Curvature. Lateral curvature of the spine. Yes, जो spinal cord है, उसका thoracic and lumbar portion दोनों opposite side में निकल जाएगा. So there will be S-shaped curvature of the spine. Then you have to do the palpation. आपको सारे joints, muscles और bones palpate करने हैं. Then you have to check the range of motion. कैसे check करोगे? Through Active Active. and yes, active and passive ROM. Normally कैसा होगा ROM patient का? There will be no tenderness. Patient को pain नहीं होना चाहिए. But easily moved. Yes, easily movable होंगे और Without कोई भी swelling. swelling. If there is pain, limited mobility, spastic movement, ऐसा सब कुछ देखने को मिले तो that is something abnormal. फिर आपको मसल टोन एंड स्ट्रेंथ चेक करनी है. वो आप रेंज ऑफ मोशन के साथ ही चेक कर सकते हो. while doing the range of motion you can check the muscle tone and muscle strength. So पेशेंट को आप क्या बोलोगे? कैसे चेक करोगे पेशेंट की मसल की स्ट्रेंथ? ओके, यस. स्ट्रेंथ चेक करने के लिए दैट इज द बेस्ट मेथड. आपको रजिस्ट पेशेंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में करवाना है. आप कुछ भी बोल सकते हो. यू कैन ऑल्सो टेल द पेशेंट लाइक हम वो पंजा लड़ाते तो कैसे ऑपोजिट रेजिस्टेंस होता है. यू कैन एनी चेक एनीवेयर. आपको बस रेजिस्टेंस लगाना है. पेशेंट और आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना है. पेशेंट कितनी देर तक सस्टेन कर सकता है वो फोर्स. तो दैट इज द मसल स्ट्रेंथ. और मसल टोन नॉर्मल होनी चाहिए. इफ देयर इज एबनॉर्मल इट माइट बी. Yes, so what is the terminology for that? Tone is setting. Yes. अगर मसल की टोन ज्यादा बहुत ही हाइपर एक्टिव हो गए हैं, so it is called as Hypertonicity. Hypertonicity. The muscle has become hypertoned. And what is the muscle activity has diminished? Then it is called as Hypertonicity. hypotonicity. Hypotonicity. Yes. Then there is the grading system. आप मसल की स्ट्रेंथ है उसको ग्रेड दोगे कि कितनी स्ट्रेंथ है मसल्स में. So what are the gradings? कितने हैं? 6. 0 to 5. Are there? Yes, 0 to 5. What is the normal grading? 5. 5. That is the best grading. पेशेंट की कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन भी है. पेशेंट अगेंस्ट द ग्रेविटी भी हैंड्स मूव कर सकते हैं, मतलब ऊपर की तरफ. और पेशेंट फुल रेजिस्टेंस में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं. वो बहुत ही अच्छा सा हमें कंपटीशन दे सकते हैं. रेजिस्टेंस को वो कर सकते हैं रेजिस्ट. देन व्हाट इज द ग्रेड 3? ओके. एंड फुल रेंज ऑफ मोशन. पेशेंट फुल आरओएम कर सकता है. सारे जॉइंट्स मूव कर सकता है पेशेंट. पर वो अगेंस्ट द ग्रेविटी भी मूव कर सकता है, पर वो रेजिस्टेंस को नहीं मूव कर पाएगा. अगर आप रेजिस्टेंस दोगे पेशेंट को, ऐसे हाथ पर ऐसे बोलोगे कि मेरे हाथ को धक्का दो, तो पेशेंट नहीं कर पाएगा. वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा. दैट इज द ग्रेड 3. व्हाट इज द ग्रेड 0? नो एनी No एक्टिविटी. of movement. कुछ भी मूवमेंट ही नहीं हो रहा है. जस्ट लाइक अनकॉन्शियस और कोमेटोज पेशेंट हो गया, उसका कैसा होगा? जस्ट लाइक दैट. व्हाट इज द ग्रेड 4? Full range of motion against gravity and some resistance, but weakly कर सकते. हाँ,
वो फुल रेंज ऑफ मोशन भी कर सकते हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी भी उनके लिम्स मूव कर पाएंगे, पर रेजिस्टेंस जब आप दोगे पेशेंट को ऑपोजिट फोर्स, सो वो बहुत ही कम रेजिस्ट कर पाएंगे, बहुत ही वीक है अभी मसल्स, दैट्स व्हाई। व्हाट इज द ग्रेड 2? full range of थोड़ी थोड़ी motion मूवमेंट कर but सके, not ट्रेस ऑफ yes gravity. yes, there is full range of motion but patient against the gravity, मतलब नीचे नीचे मूव कर पाएगा। अगर आप उससे बोलोगे कि ग्रेविटी के ऑपोजिट मूव करने हैं आपके हाथ और पैर, so patient कैन नॉट मूव दैट। अगर वो लेग भी लिफ्ट करेगा तो पेशेंट नहीं कर पाएगा, लेग भी लिफ्ट और हाथ भी ऊपर लिफ्ट नहीं कर पाएगा। व्हाट इज ग्रेड 1? Ease of movement. Limited Of movement or any little movements, just like patient after awaking from the comatose state, patient थोड़ी थोड़ी कैसे movement करता है, just like that, so there will be only little trace of movement। what is the client teaching? What advice you will give to the patient? Consume balanced diet, high calcium, high vitamin. Yes. Yes, we will advise the patient to consume well balanced diet, vitamin D and calcium for the bones and joints, protein for the muscles. If the patient is taking vegan diet, then we can advise to consume soy milk or almond milk. Yes. Then we will advise the patient to avoid such activities that can put, yes, strain or stress on the joints or muscles. So avoid those activities. Then encouraged to maintain a normal weight. yes, we will advise. Yes, we will advise the patient to maintain the normal weight, not obese, not underweight. Okay, then yes, we will advise the patient about the exercise. Exercise is very beneficial. Importance of exercise. Then yes, that also advice we can give. We can advise the patient If if the that. muscle pain or joint, so contact to PSCP. Huh. If you can see any abnormalities in your muscles, joint or bones, movement नहीं हो रही है, कुछ भी problem है, so you have to contact the PHCP. Any doubt till this? No. Okay, so let's start the assessment of neurological system. Neurological system में पहले आप subjective data लोगे patient को, patient से पूछोगे about headache, dizziness or vertigo. What is vertigo, new students? Yes, whirling sensation. Patient को ऐसा लगेगा कि सब कुछ घूम रहा है, so that is the vertigo. Tremors, weakness. What is tremors? हाथ ध्रुजे, tremors. Shaking or vibration of the muscles, so that is called as tremors. Weakness, incoordination, numbness or tingling in any area of the body, or numbness or tingling दोनों present हो तो there is a terminology. What is that? Paresthesia. Patient is experiencing paresthesia in the arm. It indicates the patient is experiencing numbness and tingling sensation in the arms. So there is a terminology, that is paresthesia. Difficulty in speaking or swallowing. Medications being taken, कोई medications ले रहे हो या नहीं. History of seizures. History of head injury or surgery. कोई पहले head injury or surgery करवाई है. Exposure to environmental or occupational hazards. कोई ऐसा ऑक्यूपेशनल हैजार्ड या फिर ऐसे एनवायरनमेंट में आपको कांटेक्ट हुआ है, लाइक एनी केमिकल्स, अल्कोहल और ड्रग जो न्यूरोटॉक्सिक हो, जो ब्रेन की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हो। ऐसे ड्रग्स और अल्कोहल भी ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है। पेशेंट अगर अल्कोहल कंज्यूम करता है तो द मोमेंट बिकम्स इनकोऑर्डिनेटेड। सो एनीथिंग दैट यू हैव कॉन्टेक्टेड, सो ये सब आप सब्जेक्टिव डेटा में इंफॉर्मेशन लोगे पेशेंट से। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव डेटा फॉर असेसमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। आप ऐसे ही पेशेंट को ब्रेन हम देख नहीं पाएंगे, वी कैन नॉट palpate percussion or auscultate the brain, so we have to use different various methods for the assessment of neurological examination. We cannot do the palpation over the head, we cannot do the percussion over the head, we cannot inspect. हम क्या इंस्पेक्ट कर सकते हैं? ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हुआ है, नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो उसकी वजह से सारी बॉडी सिस्टम पर अफेक्ट होगा और वो हम इंस्पेक्ट कर पाएंगे, वो हम देख सकते हैं, पर डायरेक्टली ब्रेन हम नहीं देख सकते। सो देयर आर वेरियस मेथड्स, वेरियस टेस्ट, वो सारे टेस्ट में हम इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन वो सब यूज कर सकते हैं, बट नॉट डायरेक्टली ओवर द ब्रेन। अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस मैम।
हाँ, सो ऑब्जेक्टिव डेटा में हमें क्या करना है? सो असेसमेंट ऑफ क्रेनियल नर्व्स, सारी क्रेनियल नर्व्स हमें असेस करनी है। अब जब आप क्रेनियल नर्व असेसमेंट करते हो तो उस टाइम आप इंस्पेक्शन, पाल्पेशन और वो सब यूज कर सकते हो, बट नॉट डायरेक्टली ओवर द नर्वस सिस्टम। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करनी है, प्यूपिल्स चेक करना है हमें, मोटर फंक्शन पेशेंट का चेक करना है इन ऑब्जेक्टिव डेटा, सेरेब्रल फंक्शंस चेक करना है, कोऑर्डिनेशन पेशेंट का कैसा है वो चेक करना है, सारे सेंसरी फंक्शंस पेशेंट के कैसे हैं, सारे रिफ्लेक्सेस कैसे हैं पेशेंट के, वो सब हमें चेक करना है इन द ऑब्जेक्टिव डेटा। Note mental and emotional status, behavior and appearance, language ability, and intellectual functioning, including memory, knowledge, abstract thinking, association, and judgment. जब भी आप नर्वस सिस्टम का एग्जामिनेशन करते हो तो पेशेंट का मेंटल और इमोशनल स्टेटस भी आपको नोट डाउन करना है इन न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। पेशेंट का बिहेवियर कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, लैंग्वेज एबिलिटी कैसी है, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग कैसा है, पेशेंट की मेमोरी कैसी है, नॉलेज, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एसोसिएशन एंड जजमेंट, वो सब कैसा है, हमें सब न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में जो हमने मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन स्टडी किया वो सारी इंफॉर्मेशन नर्वस सिस्टम में भी आ सकती है, इट इज इंक्लूडेड इन दैट। अभी फर्स्ट हमें वाइटल साइंस चेक करना है, बिकॉज ब्रेन इज द सीपीयू ऑफ अवर बॉडी, ब्रेन अफेक्ट हो जाएगा तो सारी बॉडी सिस्टम पर अफेक्ट होगा। सो फर्स्ट एंड foremost thing is taking the vital signs. So check temperature, pulse, respiration, blood pressure, and monitor for blood pressure or pulse changes. आपको blood pressure और pulse change करना है, check करना है, because it can indicate the increased intracranial pressure. We know अगर intracranial pressure increase हो जाएगा तो there will be changes on the temperature, pulse, respiratory rate, blood pressure, सारे vitals change हो जाएंगे। See chapter 1 for the abnormal respiratory patterns. हमने 51 chapter that is the respiratory systems में हमने सारे abnormal respiratory patterns study किए थे, like kinestroke respiration and absence breath, और वो सब हमने उस chapter में study किए थे, and जो new है वो already future में study करेंगे। Then we have to assess the cranial nerves. Vital signs हमने check कर दिए, then we have to assess each and every cranial nerve. There are how many cranial nerves? 12. 12 cranial nerves. So we have to assess every cranial nerves. Already हम जब system wise study कर रहे थे तो उसमें each and every cranial nerve आ गई थी. So we are just repeating that. Okay. So first is cranial nerve 1, which is also called as olfactory nerve, and it is responsible for Math. sense of smell. Yes, वो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड द फंक्शन इज सेंसरी फंक्शंस। वी नो कि सारी जो नर्व्स है, some nerves have sensory function, some nerve has motor function, and some nerves have both function, sensory as well as motor. So olfactory is sensory nerve and it controls the sense of smell. आप कैसे चेक करोगे पेशेंट की olfactory nerve? Tell me. We will tell the patient to close their eyes, and we will put any object in front of the patient, and we have to just simply tell the patient identify which object is this only by the sense of smell. So that is the assessment of olfactory nerve. Have the client close the eyes and occlude one nostril with a finger. Ask the client to identify non-irritating and familiar odors. Example, coffee, tea, gloves, soap, chewing gum, peppermint. हम कुछ भी पेशेंट को ऐसे आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, बट मेक श्योर कि जो भी पेशेंट ऐसे स्मेल ले तो उसको उसमें इरिटेशन ना होना चाहिए। लाइक पेशेंट इनहेल कर देगा और पेशेंट के नोज में चला जाएगा तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, वैसे ऑब्जेक्ट्स नहीं लेने हैं। नॉन इरिटेटिंग ओडर्स से आपको पेशेंट को आइडेंटिफाई करवाना है, और रिपीट द टेस्ट ऑन अदर नॉस्ट्रिल। एक नॉस्ट्रिल बंद करके पेशेंट ने स्मेल किया, आइडेंटिफाई किया, फिर दूसरी नॉस्ट्रिल से करना है। पेशेंट अगर नॉर्मली आइडेंटिफाई कर देगा ऑब्जेक्ट को, सो इट इंडिकेट्स कि ऑल्फैक्टरी नर्व उसकी प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। नेक्स्ट इज क्रेनियल नर्व 2, दैट इज द ऑप्टिक नर्व. It is sensory nerve and it controls the vision, sense of vision. Vision control करते हैं. So हम vision कैसे check करेंगे patient का? Yes, Ishihara chart. Snellen chart. Snellen chart. Yes. Near, yes, handheld chart. Near vision check करेंगे, distance vision check करेंगे, फिर पेरिफेरल विजन भी चेक कर सकते हैं, कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं। सारे आई टेस्ट जो हमने ऑलरेडी आई में स्टडी किए थे वो सब यहाँ पर रिपीट करेंगे। असेस द विजुअल एक्विटी विद द स्नेलन चार्ट एंड परफॉर्म एन ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन।
आप स्नेलर चार्ट चेक करोगे, ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी आप चेक कर सकते हो टू चेक द फंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व। पेरिफेरल विजन चेक करोगे बाय कंफ्रंटेशन टेस्ट। चेक द कलर विजन बाय इशिहारा चार्ट। नियर विजन भी आप चेक कर सकते हो, 14x14 वाला था, सो यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ cranial nerve 3, 4 and 6. All three cranial nerves you have to assess by a single test because they are functioning together. So cranial nerve 3 is oculomotor, cranial nerve 4 is trochlear, and cranial nerve 6 is abducens nerve. They all three are motor nerves which controls the Eye movement. eye movements, the pupil movement, the eyeball movement. In short, they control the whole eye. So we have also studied this in the assessment of eye. So cranial nerve 3, oculomotor, controls the pupillary constriction, upper eyelid elevation and most eye movements. जो हमारी pupillary constriction dilatation है वो oculomotor nerve control करती है. upper eyelid का जो elevation up and down है वो भी oculomotor से control होता है. And most of the eye movements is controlled by oculomotor. ट्रॉक्लियर नर्व क्या करेगी? सो इट कंट्रोल्स द डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द आई। जो डाउनवर्ड मूवमेंट है, ऐसे हम नीचे की तरफ देखते हैं, नोज की तरफ देखते हैं, सो वो मूवमेंट ट्रॉक्लियर नर्व कंट्रोल करती है। एंड द एब्ड्यूसेंस नर्व कंट्रोल्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ द आई। जो लेटरल मूवमेंट्स है आईज की वो एब्ड्यूसेंस नर्व कंट्रोल करती है। सो हाउ यू विल चेक द मूवमेंट ऑफ द आईज? इशिहारा से हम मूवमेंट चेक नहीं कर सकते। नो, यस, लाइट रिफ्लेक्स हम प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन डायलेटेशन चेक कर सकते हैं। सो यस, कवर अनकवर टेस्ट। ओके, कवर अनकवर टेस्ट से मूवमेंट इफ देयर इज निस्टेगमस वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आई मूवमेंट नहीं। यस, सो दैट इज we will check the 6 cardinal gazes of the patient. yes, हम पेशेंट को ऐसे फिंगर मूव करके पेशेंट को बोलेंगे कि फॉलो दिस फिंगर और फॉलो दिस ऑब्जेक्ट। पेशेंट सारी डायरेक्शन में आईज उसकी मूव कर पाए तो इट मींस कि पेशेंट की cranial nerve 3, 4 and 6 are working normally. The motor function of the cranial nerve 3, 4 and 6 overlap. They therefore they should be tested together. हम साथ में ही चेक कर लेंगे। Inspect the eyelid for ptosis, that is the drooping of the eyelids. Then assess the ocular movements and note any eye deviation. पेशेंट को पहले तो देख लेना, इंस्पेक्ट ही कर देंगे कि पेशेंट को ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड्स है या नहीं। बिकॉज जब ये नर्व्स डैमेज हो जाएगी तो पेशेंट आईलिड्स ऐसे लिफ्ट नहीं कर पाएगा, और पेशेंट की आईज ऑलरेडी डेविएटेड है कि नहीं वो हम पहले ही इंस्पेक्ट कर देंगे। टेस्ट अकोमोडेशन एंड डायरेक्ट एंड कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्सेस। अकोमोडेशन टेस्ट से भी हमें पता चलता है कि प्यूपिल डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट प्रॉपर्ली हो रही है या नहीं। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन द ऑक्यूलोमोटर नर्व? अगर ऑक्यूलोमोटर नर्व में प्रॉब्लम होगा तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन एंड डायलेटेशन जो हो रहा है वो नहीं होगा। सो वी विल टेस्ट द अकोमोडेशन टेस्ट एंड डायरेक्ट एंड कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्सेस, दैट इज यूजिंग द टॉर्च। एंड फॉर द मोमेंट वी विल check the 6 cardinal gazes of the patient. Understood? Yes, ma'am. Okay. Next is cranial nerve 5, that is the trigeminal nerve. It functions as sensory and motor both. What does it control? It controls the sensation in the cornea, nasal and oral mucosa and facial skin as well as the mastication. ये सब ये control करते हैं, the sensation and the motor function. Mastication is the motor function. Sensation in the cornea is sensory function. Facial and skin sensations are the sensory functions, और जो movement होती है that is the motor function. So there are two functions. How you will check the trigeminal nerve? Let's see. To test the motor function, trigeminal nerve के दो function है. So motor function check करने के लिए आप क्या करोगे? Trigeminal nerve का to test the motor function, ask the client to clench the teeth and assess the muscles of mastication. Then try to open the client's jaw after asking the client to keep them tightly closed. आप पेशेंट को मोटर फंक्शन चेक करना है, मेस्टिकेशन में यूज होता है। सो हाउ यू विल चेक? यू विल टेल द क्लाइंट टू क्लेंच द टीथ। ऐसे जोर से दबाएंगे आप, ऐसे जोर से दबाओगे, च्यूइंग करते वक्त ये मसल्स मूव होते हैं। सो पेशेंट जैसे ऐसे च्यू करेगा, यू कैन आइडेंटिफाई द मूवमेंट ओवर हियर। ट्राई ऑल, एवरीवन प्लीज ट्राई। सो अगर नॉर्मली च्यू कर रहा है, यस, ऐसे करने से यू कैन आइडेंटिफाई इजीली मूवमेंट।
सो अगर पेशेंट को नॉर्मल मूवमेंट है सो इट इंडिकेट्स नॉर्मल फंक्शन. सेकेंड, आपको क्या करना है, उसकी स्ट्रेंथ भी चेक करनी है, इट इज मोटर फंक्शन. सो आपको पेशेंट को बोलना है कि टाइटली जॉ क्लोज रखे और आपको ओपन करने की कोशिश करनी है. दोनों को अपोजिट फोर्स लगाना है सिंपली. अगर पेशेंट आप ओपन करने का ट्राई करोगे और पेशेंट टाइटली क्लोज रखेगा, सो पेशेंट अगर रेजिस्ट कर पा रहे हैं तो आपको ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी. सो इट इंडिकेट्स द नॉर्मल स्ट्रेंथ ऑफ दैट मसल्स. अंडरस्टूड? Yes. Next, the corneal reflex may be tested by the PHCP. This is done by lightly touching the client's cornea with a cotton wisp. This test may be omitted if the client is alert and blinking normally. Yes, जो corneal reflex test है, that is not for the nurse. It should be done by PHCP. Yes, वो हमें नहीं करना है. We are just studying this कि वो कैसे होता है, पर हमें नहीं करना. वो PHCP करेगा. कैसे करेगा? सो कोई भी कॉटन विस्क या कपड़े से कॉर्निया को टच करने का ट्राई करना है. सो पेशेंट आपकी आंख में कोई भी ऐसे नजदीक कुछ लाता है तो ऐसे आप आईज क्लोज कर देते हो. सो वो कौन से पेशेंट में करोगे? जो अनकॉन्शियस है, बहुत टाइम से ब्रेन इंजरी है, वेंटिलेटर पर है, ज्यादा मूवमेंट नहीं है, सेमी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस है, उस पेशेंट में करना है कि इज देयर अ कॉर्नियल रिफ्लेक्स नॉर्मल और नॉट. हेल्दी इंडिविजुअल है उसमें नहीं करना है ये टेस्ट, उन लोगों में ऑमिट करना है. अगर कोई आपके पास हेल्दी इंडिविजुअल आया तो आप ऐसे आंख में डालोगे तो ऑब्वियसली वो पेशेंट ब्लिंक कर देगा बिकॉज द पेशेंट इज अलर्ट. सो उन लोगों में ऑमिट करना है ये टेस्ट. जो पेशेंट सेमी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस है उन लोगों में डॉक्टर्स चेक करते हैं कि ये पेशेंट में कॉर्नियल रिफ्लेक्स आया कि नहीं, बिकॉज वो पेशेंट ऐसे कुछ भी मूवमेंट नहीं करेंगे, दे विल नॉट इवन ब्लिंक देयर आईज. सो उन लोगों में करना है और वी कैन नॉट डू दिस टेस्ट, इट शुड बी डन बाय PHCP only. Yes. Yes. Next, check the sensory function by asking the client to close the eyes. Lightly touch the forehead, cheeks, and chin, noting whether the touch is felt equally on the two sides. हमने देखा कि अभी फेशियल स्किन का भी हमें चेक करना है सेंसेशन. तो पेशेंट को क्या बोलेंगे? क्लोज देयर आईज. पेशेंट को आंख बंद करवाएंगे और फेस पर सारी जगह लाइक फोरहेड, चीक्स, चिन्स कहीं पे भी हम टच करेंगे और पेशेंट को बोलना है कि आपको टच सेंसेशन फील हुआ, सेंसेशन फील हो रहा है, दोनों साइड इक्वली फील होना चाहिए. फॉर एग्जांपल इस साइड हम पेशेंट को टच करेंगे राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड टच करेंगे, पर पेशेंट को एक ही साइड फील हुआ तो इट इंडिकेट्स कि ये साइड वाली जो ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है दैट इज समथिंग एबनॉर्मल, वो ब्रांच में कुछ प्रॉब्लम है. सो पेशेंट को लेफ्ट साइड सेंसेशन नहीं आ रहा, सिर्फ राइट साइड सेंसेशन आ रहा है. तो दोनों साइड सेंसेशन होना चाहिए. टच का जो सेंसेशन है पेशेंट को फील होना चाहिए. अंडरस्टूड? Yes. नेक्स्ट इज હા યસ બેલ્સ પાલ્સી જે છે એમાં ટ્રાઇજેમિનલ નર્વ જ પ્રોબ્લેમ થઈ જાય. Next is cranial nerve 7, that is the facial nerve. It is also a sensory and motor nerve. It controls the movement of the face and taste sensation. जो हमारे facial movements होते हैं जैसे frowning और smiling, जो movements है वो कौन control करता है? So facial movement. And sensation of taste is also controlled by the facial nerve. Understood? फेस के जो सेंसेशन है वो कौन कंट्रोल करते हैं? जो हमारे फेस पर सेंसेशन है वो कौन कंट्रोल करेगा? ट्राइजेमिनल नर्व. और फेस की मूवमेंट्स कौन कंट्रोल करेगी? फेशियल. ओके, सो फेशियल नर्व में अभी टेस्ट सेंसेशन करने के लिए व्हाट वी कैन डू फॉर द सेंसेशन ऑफ टेस्ट? यस, वी विल प्रोवाइड समथिंग टू द पेशेंट टू टेस्ट दैट ऑब्जेक्ट एंड आइडेंटिफाई कि आपको कौन सा टेस्ट आ रहा है. सिंपल दैट. So test taste perception on the anterior two-third of the tongue. The client should be able to taste salty and sweet taste. We know कि we can identify 4 tastes on our tongue: salty, sweet, sour and bitter. Sour and bitter वो पीछे की तरफ आते हैं, आगे की तरफ sweet and salty taste आते हैं. So आगे की तरफ हम टंग पर कुछ रखेंगे. We have to advise the client to close their eyes. अगर client देख लेगा तो client को easily पता चल जाएगा कि क्या है. क्लाइंट को आंखें बंद करवा के उनकी टंग पर आगे की साइड कुछ रखना है और क्लाइंट को पूछना है कि आपको कैसा टेस्ट आया. सो दिस इज हाउ यू कैन टेस्ट द सेंसेशन ऑफ टेस्ट. हैव द क्लाइंट स्माइल, फ्राउन एंड शो द टीथ. आपको पेशेंट को बोलना है. अभी मोटर फंक्शन चेक करने के लिए क्या बोलोगे? आप पेशेंट को बोलिए स्माइल करो, फ्राउन करो. फ्राउन मीन्स यस, फ्राउनिंग मीन्स to be upset like this. You have to tell the patient to draw your lips downward.
स्माइलिंग की वजह से ऊपर जाएंगे, फ्राउनिंग की वजह से ऐसे नीचे जाएंगे, अपसेट हो जाते हैं तो कैसा इमोजी होता है, जस्ट लाइक दैट। एंड वी विल ऑल्सो आस्क द पेशेंट टू शो देयर टीथ। आपको पेशेंट को बोलना है कि अपने टीथ बताओ, so ऐसे स्माइल करके वाइड ओपन करना है लिप्स। आस्क द क्लाइंट टू पफ आउट द चीक्स। क्लाइंट को ऐसा बोलना है कि cheeks puff karo, yes. So if they can do all these things normally, so there is no any problem or abnormality in the facial nerve. Attempt to close the client's eye against resistance, yes. फिर आपको क्या करना है, क्लाइंट की रेजिस्टिविटी भी चेक करनी है। आप क्या करोगे, क्लाइंट की आईज ऐसे यहाँ से ओपन करके रखोगे ऐसे, और पेशेंट ऐसे, पेशेंट की आंखें क्लोज है और आप ओपन करने का ट्राई करोगे। पेशेंट कितनी देर तक ऐसे आंखें क्लोज करके रखता है, रेजिस्टेंस करके रखता है, सो यू हैव टू आल्सो चेक दिस थिंग्स। अंडरस्टूड? यस। Okay. Next is cranial nerve 8, that is acoustic and vestibulocochlear nerve. उसका दोनों नाम है, acoustic nerve भी बोल सकते हैं और vestibulocochlear nerve. The function is sensory function. It controls the hearing and vestibular function. Hearing कौन सी nerve, कौन सी branch control करेगी? Cochlear. Cochlear branch will control the hearing and vestibular branch will control the balance. Balance. Vestibular function. So we have to check both hearing and balance also. So उसके लिए आप क्या करोगे, hearing के लिए there are different types of hearing tests जो हमने already ear examination में study किए थे. So वो सब आप कर सकते हो to identify the hearing test and to identify the balance. हाँ, सो हमने वो सारे टेबल बॉक्स में टेस्ट देखे थे, सो उससे बैलेंस भी आप चेक कर सकते हो। सो यस, यू कैन आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व। अगर क्लाइंट का हियरिंग प्रॉपर है, वेस्टिबुलर बैलेंस नहीं अच्छा है, सो इट इंडिकेट्स कि जो वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व है उसका कॉक्लियर ब्रांच फंक्शनिंग प्रॉपर है, वेस्टिबुलर ब्रांच फंक्शन बिगड़ गया है। सो असेसिंग द क्लाइंट्स एबिलिटी टू हियर, टेस्ट द कॉक्लियर पोर्शन। हियरिंग का टेस्ट आप जो भी क्लाइंट की जो हियरिंग एबिलिटी है उससे क्या पता चलेगा कि कॉक्लियर पोर्शन कैसे वर्क कर रहा है, कॉक्लियर ब्रांच कैसे वर्क कर रही है। असेसिंग द क्लाइंट सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, टेस्ट द वेस्टिबुलर पोर्शन। अगर पेशेंट का इक्विलिब्रियम, सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, सेंस ऑफ बैलेंस अच्छा है, तो इट इंडिकेट्स कि वेस्टिबुलर पोर्शन बराबर काम कर रहा है। चेक द क्लाइंट्स हियरिंग यूजिंग एक्विटी टेस्ट। आपको क्लाइंट का हियरिंग चेक करना है, जो सारे टेस्ट थे हियरिंग के, विस्पर टेस्ट, वॉच टेस्ट, फिर वो हम ट्यूनिंग फॉक से भी करेंगे, देयर आर डिफरेंट वेरियस काइंड्स ऑफ टेस्ट, सो उसे चेक करना है। ऑब्जर्व द क्लाइंट बैलेंस एंड वॉच फॉर द स्विंग व्हेन द वॉकिंग और स्टैंडिंग। फिर क्लाइंट का बैलेंस चेक करना है और क्लाइंट में स्विंग हो रहा है, ऐसे मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, वो चेक करना है। Assessment of sensory neural hearing loss may be done with Weber's or Renitis. हम सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस वेबर्स और रेनिटेस से भी कर सकते हैं, दैट इज ट्यूनिंग फॉक, बट इट इज नॉट जनरली यूज्ड नाउअडेज, बट वो हम कर सकते हैं, इट कैन बी डन। ओके, next is cranial nerve 9 and cranial nerve 10. The cranial nerve 9 is glossopharyngeal nerve and cranial nerve 10 is vagus nerve. वो दोनों नर्व्स हमें साथ में टेस्ट करनी है। क्रेनियल नर्व 9 का फंक्शन क्या है, सो सेंसरी एंड मोटर फंक्शन, एंड 10 का भी सेंसरी मोटर फंक्शन बोथ है। 9 क्रेनियल नर्व क्या कंट्रोल करेगी, सो इट कंट्रोल्स द स्वेलोइंग एबिलिटी, सेंसेशन इन द pharyngeal soft palate and tonsillar mucosa, जो पीछे की तरफ बैक ऑफ द थ्रोट जो सेंसेशंस है वो किसकी वजह से आते हैं, तो ड्यू टू द glossopharyngeal nerve. टेस्ट परसेप्शन ऑन द पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द टंग एंड सलाइवेशन, आगे की साइड का टेस्ट सेंसेशन कौन सी नर्व कंट्रोल कर रही थी, स्वीट एंड फेशियल नर्व, यस। पीछे की साइड के टेस्ट के सेंसेशन कौन सी नर्व कंट्रोल करेगी, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, दैट इज नर्व 9। और सलाइवेशन का भी फंक्शन टेस्ट इसी से, ये सलाइवेशन भी यही नर्व कंट्रोल करती है। वेगस नर्व क्या कंट्रोल करेगी, सो इट आल्सो कंट्रोल्स द स्वेलोइंग एंड फोनेशन। व्हाट इज दैट, फोनेशन मींस, व्हाट इज दैट फोनेशन, फोनेशन मींस સાઉન્ડ પ્રોડ્યુસ કરીને વોકલ કોડ એમ કરવાની. okay, so no, it is not responsible for vocal cords, but we know
हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अवर माउथ. हमें ओ बोलना है तो हमारा माउथ ओ ऐसे मूव करेगा. आ, सो मूवमेंट आ होगी. सो वो फोनेशन कंट्रोल करता है. अगर हमें ओ बोलना है पर हम लिप्स क्लोज ही नहीं करेंगे तो ओ साउंड निकलेगा हमारे मुंह से? इज इट पॉसिबल? If we want to take out o sound but we are resisting the movement of lips, so उसमें से o sound निकलेगा? No, ma'am. नहीं No, it is not possible. So phonation, different types of sound produce करने के लिए there must be a movement in our mouth. हमारी टंग मूवमेंट होती है, हमारे माउथ की लिप्स की मूवमेंट होती है, उसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड निकलते हैं. वोकल कॉर्ड्स में से खाली वाइब्रेशंस निकलते हैं, वोकल कॉर्ड्स में से साउंड नहीं निकल सकते. साउंड ऐसे क्यों अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के निकल रहे हैं? बिकॉज वी आर मूविंग अवर टंग, वी आर मूविंग अवर लिप्स, उसकी वजह से ईच एंड एवरी अल्फाबेट और वर्ड्स अलग अलग हो रहे हैं. सो दैट इज अ फोनेशन, प्रोडक्शन ऑफ साउंड. बट वो वोकल कॉर्ड्स पर कंट्रोल नहीं है. That the control is on the tongue and our mouth, lips. Understood? यस. Yes. So sensation in the exterior ears, posterior wall and sensation behind the ear. दूसरी कहाँ की सेंसेशन कंट्रोल करती है? वेगस नर्व. सो एक्सटीरियर ईयर की जो सेंसेशन है, ईयर के पीछे के जो सेंसेशन, हम पेशेंट को टच करेंगे या कुछ भी होगा तो वो सेंसेशन कौन कैरी करेगा? सो वेगस नर्व कैरी करेगी. इट कंट्रोल्स द सेंसेशन इन थोरेसिक एंड एब्डोमिनल वीजरा. जो थोरेसिक और एब्डोमिनल वीजरा में जो भी सेंसेशन हो रहा है पेशेंट को, वो भी वेगस नर्व कंट्रोल करती है. अंडरस्टूड? यस. ओके. तो दोनों नर्व का एग्जामिनेशन एक साथ में ही होगा. So what you can do? So usually cranial nerve 9 and 10 are tested together. The taste perception on the posterior third of the tongue or pharynx. The client should be able to taste bitter and sour taste. अभी पेशेंट को पीछे के साइड हमें पता है, आगे सॉल्टी और स्वीट टेस्ट आइडेंटिफाई होते हैं और टंग के पीछे बीटर और सॉर टेस्ट आइडेंटिफाई होते हैं. सो हमें वो ही परसेव करना है. पेशेंट को आईज क्लोज करवा देनी है और कुछ बीटर या सॉर टेस्ट का क्लाइंट के मुंह में पीछे की साइड प्लेस करना है. इफ द क्लाइंट आइडेंटिफाइज द टेस्ट completely correctly, so it indicates कि उसका टेस्ट परसेप्शन प्रॉपर है. Inspect the soft palate and watch for the symmetrical elevation when the client says ah. उसका सॉफ्ट पैलेट चेक करना है और सिमेट्रिकल एलिवेशन ऑफ व्हाट? पेशेंट आ बोलेगा तो क्या एलिवेट होगा, रेज होगा? उवुला. यस. सो पेशेंट का आ बोलने से उवुला और जो पैलेट्स है, जो टॉन्सिल्स है, वो मूवमेंट हो रही है कि नहीं, सिमेट्रिकल हो रही है या नहीं, वो हमें चेक करना है. टच द पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल विथ अ टंग डिप्रेसर टू एलिसिट अ गैग रिफ्लेक्स. गैग रिफ्लेक्स भी हमें पेशेंट का चेक करना है. सो टंग डिप्रेसर से हम पोस्टीरियर फेरिंग्स टच करेंगे. जैसे ही टच करेंगे पेशेंट विल बिकम नोजिएटेड. सो दैट इज द पॉजिटिव गैग रिफ्लेक्स. अंडरस्टूड? यस. यस. गैग रिफ्लेक्स कौन सी नर्व की वजह से पता चला? थ्रू द वेगस नर्व. यस, वेगस नर्व से हमें इजीली पता चलेगा. ओके. देन क्रेनियल नर्व 11, दैट इज द स्पाइनल एसेसरी नर्व. इट इज अ मोटर नर्व एंड इट कंट्रोल्स द स्ट्रेंथ ऑफ नेक एंड शोल्डर मसल्स. ये सारे जो नेक और शोल्डर मसल्स है वो कंट्रोल करती है स्पाइनल एसेसरी नर्व. सो हमने ऑलरेडी हेड, नेक एंड लिम्फ नोड असेसमेंट में देखा था. तो स्पाइनल एसेसरी नर्व्स मसल्स चेक करने के लिए आप क्या करते हो? Yes. Online students, how you will check the spinal accessory nerve function? We have already studied this. We will check two muscles, sternocleidomastoid muscles and trapezius muscles. Sternocleidomastoid muscles are muscles located in the neck and trapezius muscles are on the shoulder. So how you will check these muscles? Strength of this muscle? શોલ્ડર ની ઉપર રેઝિસ્ટન્સ મૂકવાનું અને પેશન્ટને એમ અપ કરવાનું કહેવાનું. यस. पेशेंट जरा हम शोल्डर्स, पेशेंट जब भी ऐसे शोल्डर्स अप करेगा हमें ऐसे डाउन करने हैं. सो दोनों को ऑपोजिट फोर्स लगाना है, तभी हम उसकी स्ट्रेंथ चेक कर पाएंगे उस मसल की. सो दैट इज फॉर द शोल्डर, ट्रेपेजियस मसल. और स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड मसल के लिए એમાં શોલ્ડર ને પાછળ શ્રગ કરવાનું કહેવાનું અને રેઝિસ્ટ ફોલ્ડ. no, that is for the trapezius. Shrugging is for the trapezius. ઓકે. For sternocleidomastoid muscle, they are located over the neck. So
The shoulder થી જ કર. I'm saying no, means I'm using my sternocleidomastoid muscles. So I want to check the strength of this muscle. अगर पेशेंट ऐसे मूव कर पा रहा है तो इट मीन्स कि हाँ देर इज गुड फंक्शन, पर उसकी स्ट्रेंथ भी तो हमें चेक करनी है. सो हाउ यू विल चेक दिस मोमेंट स्ट्रेंथ? ओके, लेट्स स्टडी. आप भूल गए हो. The nurse palpate and inspect the sternocleidomastoid muscle as the client pushes the chins against the nurse's hand. हाँ, सो हमें पेशेंट को क्या ऐसे रजिस्ट करना है. पेशेंट को राइट तरफ देखना है और हम देखने नहीं देंगे, ऐसे दोनों एक साथ रजिस्ट करेंगे. सो उससे क्या पता चलेगी? स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड मसल की स्ट्रेंथ पता चलेगी. और पेशेंट ऐसे मूव कर पा रहा है, सो वो किसकी वजह से मूव कर रहा है? ड्यू टू द स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड मसल्स. और उसकी स्ट्रेंथ कैसी है? अगर आप पेशेंट को ऐसे करोगे और पेशेंट ऐसे ही हो जाए, वो स्ट्रेंथ लगा ही नहीं पा रहा, तो इट इंडिकेट्स दैट इज वीकनेस इन द sternocleidomastoid muscle. So movement तो होगी, we have already studied the grading. मूवमेंट तो होगी बट रजिस्ट नहीं कर पाएगा. सो जस्ट लाइक दैट, तो हमें रजिस्ट स्ट्रेंथ भी चेक करनी है. And for the shoulders, the nurse palpates and inspects the trapezius muscles as the client shrugs the shoulders against the nurse resistance. जो client है वो shoulders को shrug करेगा, ऐसे ऊपर करेगा, और हमें उसको नीचे धक्का मारना है. सो दोनों को opposite force लगानी है, strength लगानी है, to check the strength of the muscles. Understood? Yes. Yes. Next is cranial nerve 12. That is the hypoglossal nerve. So it is a motor nerve. It controls the tongue movement involved in the swallowing and speech. जब हम swallow करते हैं तब tongue movement कैसी है? During the speech जो different types of sounds निकलते हैं, phonation. So उस वक्त भी tongue movement होती है. So वो सब hypoglossal nerve control करेगी. So we have how you will check the function of hypoglossal nerve. So observe the tongue for symmetry, atrophy, deviation to the one side, and fasciculation, that is uncontrollable twitching. Ask the client to stick out the tongue. Tongue should be in midline. हमें tongue को इंस्पेक्ट करना है. Just we have to check the symmetry. Tongue एकदम symmetrical है. If there is asymmetry, it is abnormal. Atrophy है. Atrophy means સાઇઝ ડિક્રીઝ થઈ જાય. sorry, કોઈ બી સાઇઝ ડિક્રીઝ થઈ જાય જ્યારે એનો યુઝ ના થાય. decrease in the size, not increase. Increase means હાઇપરટ્રોફી. hypertrophy, and decrease means atrophy. Yes. So is there any atrophy in the tongue? Deviation to the one side, tongue एक side deviated हो गई है. Fasciculation, fasciculation means uncontrollable twitching, tongues में twitching हो रही है, एक abnormal movement हो रही है. So वो देखना है. And ask the client to stick out the tongue. Client को बोलना है कि अपनी tongue बाहर निकालो. And tongue should be in midline, ऐसे sides में नहीं होनी चाहिए, straight होनी चाहिए. So it then there must not be any asymmetry, any atrophy, any deviation, and any fasciculation. Understood? Ask the client to push the tongue against a tongue depressor and then have the client to move the tongue rapidly in and out and from side to side. अभी टंग हमने टंग देखा कि टंग नॉर्मल है, पर टंग की स्ट्रेंथ कितनी है वो भी चेक करनी है. सो ऑलवेज टू चेक द स्ट्रेंथ वी हैव टू प्रोवाइड द रेजिस्टेंस. सो आप क्या करोगे? टंग डिप्रेसर ऐसे पेशेंट के मुंह में इंसर्ट करना है, और टंग डिप्रेसर को हमें टंग की तरफ ऐसे दबाना है, और पेशेंट को बोलना है कि आप धक्का लगाओ टंग डिप्रेसर को. दोनों ऐसे फोर्स लगाएंगे. पेशेंट के फोर्स से हमें पता चलेगा कि टंग में कितनी ताकत है. व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द टंग? सो यू कैन आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द टंग मसल्स, उसकी स्ट्रेंथ पता चलेगी. फिर उसकी मूवमेंट भी चेक करनी है. सो पेशेंट को क्या बोलना है? रैपिडली इन एंड आउट मूवमेंट करे, लाइक टंग बाहर निकाले अंदर ले जाए, रैपिडली फटाफट इन एंड आउट मूवमेंट करनी है. देन साइड टू साइड भी मूवमेंट करवानी है टंग की. सो यू कैन आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द टंग. अंडरस्टूड? Yes or no? Okay. Okay, let's take a short break. Then we will check different types of tests, that on consciousness, pupil. Then we have to check all the other things. So let's take a short break. Then we will study. Online students, please come back from break. Should we start now? Yes. Okay.
So let's start. Till now, we have done the assessment of vital signs and all the cranial nerves. So let's start the assessment of consciousness. So we have to check the level of consciousness. So assess the client's behavior to determine the level of consciousness. Client के behavior से हमें पता चलेगा कि patient का consciousness कैसा है. Example, alertness, confusion, delirium, unconsciousness, stupor और coma. Completely alertness होगी तो इससे पता चलेगा कि client is completely conscious. कंफ्यूजन डेलीरियम होगा, सो इससे पता चलेगा कि क्लाइंट इज द कॉन्शियसनेस लेवल हैज लिटिल बिट डिक्रीज्ड. इट कैन बी अनकॉन्शियसनेस, उसमें सेमी कॉन्शियस पता चलेगा. अनकॉन्शियसनेस में स्टूपर और कोमा. स्टूपर मींस देयर विल बी नो मूवमेंट. कोमा में होगा देयर आल्सो बी नो मूवमेंट. सो उससे आपको कॉन्शियसनेस पता चलेगी पेशेंट की. Assessment becomes increasingly invasive as the client is less responsive. जैसे जैसे क्लाइंट अनकॉन्शियस होने लगेगा वैसे वैसे जो आपका असेसमेंट है वो इन्वेजिव होता जाएगा. कॉन्शियस है तो आपको ऑर्डर्स ही देने हैं, क्लाइंट विल रिपीट अगर वो कंप्लीटली अलर्ट है. पर पेशेंट अगर कोमा में है तो आपको चेक करना है. सब बहुत सारे इन्वेजिव प्रोसीजर्स करोगे तो जैसे जैसे कॉन्शियसनेस कम होने लगेगी वैसे वैसे इन्वेजिव असेसमेंट इन्वेजिव होने लगेगा. यूज द GCS scale, that is Glasgow Coma Scale, GCS, as appropriate. Eye opening, motor response, verbal response graded on the scale. We know कि GCS में आई मोटर एंड वर्बल रिस्पॉन्सेस है और उसके स्केल्स है. द मिनिमम स्केल, द मिनिमम स्कोर शुड बी 3 and maximum 15. 15. Yes, we cannot write 0, 2. Minimum should be 3. If the patient is comatose, there should be 3 score. So the minimum grade is 3. So on the basis of that, we can identify the level of consciousness that we have already studied in chapter 59. That is the nervous system. Next, speak to the client. कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए हम क्लाइंट से बात करनी है. पेशेंट कंप्लीटली कॉन्शियस होगा तो आपको कंप्लीटली आंसर करेगा. सेमी कॉन्शियस होगा तो द आंसर, वी नो वर्बल रिस्पॉन्सेस कैसे होते हैं इन द सेमी कॉन्शियस पेशेंट. देयर विल बी ओनली यूजिंग ऑफ वर्ड्स, कुछ भी स्पीच इरेगुलर स्पीकिंग होगा. और अनकॉन्शियस होगा तो देयर विल बी नो रिस्पॉन्स, पेशेंट बोलेगा ही नहीं. assess appropriateness of behavior and conversation. पेशेंट का बिहेवियर एंड कन्वर्जेशन कैसा है, अप्रोप्रिएट है या नहीं, वो भी असेस करना है इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. एंड लाइकली टच द क्लाइंट एज कल्चरली अप्रोप्रिएट. यस, वी हैव टू टच द क्लाइंट. हम ऐसे टच करेंगे तो पेशेंट ऐसे ओपन करेगा आईज. पेशेंट को कॉन्शियस है या नहीं उसके लिए टच करना है. बट बिफोर टचिंग द क्लाइंट मेक श्योर यू आर following the patient's culture. In some cultures, they will not allow male nurse to touch the female patient or female nurse to touch the male patient. Okay, so you have, before touching the patient, you have to consider the patient's culture. Next, pupils. Pupils में आप क्या check करोगे? So, that is a word. Pinpoint pupil. Oh, PE. Perla. We will check the perla. Yes. So assess the size. Pupil की size कैसे है? We are writing pupils are equal round. So उसकी size equal से आपको पता चली कि एक pupil कम size की है, constricted है, एक pupil dilated है, तो उसकी size check करनी है. उसकी equality, दोनों बाजू की सेम होनी चाहिए. इक्वलिटी चेक करनी है. रिएक्शन टू लाइट, जो हम लाइट रिएक्शन चेक करते हैं, रिएक्टिव टू लाइट, सो वो भी चेक करना है. इट कैन बी ब्रिस्क, स्लो और फिक्स. व्हाट इज ब्रिस्क? नो, ब्रिस्क मीन्स जो आर है, जो रिएक्टिव टू लाइट, रिएक्शन टू लाइट है, इट कुड बी ब्रिस्क, इट कुड बी स्लो, इट कुड बी फिक्स्ड. ब्रिस्क मीन्स जैसे ही आपने लाइट लाई तुरंत ही उसने रैपिडली आई कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, जैसे ही आपने लाइट ली रैपिडली डायलेट हो गई. सो इट इज द ब्रिस्क मोमेंट. स्लो मीन्स आप लाइट लाते हो पर धीरे 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 कंस्ट्रिक्शन हो रहा है. लाइट ले जाते हो तो धीरे 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 डायलेट हो रहा है. फिक्स्ड मीन्स you are bringing the light and you are removing the light, but there is no any reaction in the light. वो constrict भी नहीं हो रही, dilate भी नहीं हो रही. So it could be brisk, slow or fixed. Understood? Yes. Yes. And note any unusual eye movements. Eye movements, unusual eye movements है, like nystagmus. वैसे कुछ eye movements है तो भी आपको check करना है. You can check the direct light and consensual light reflex कि reactive to light कैसा है. And refer chapter 59 for the abnormal pupillary findings. हमने उसमें देखा था कि
कौन से कंडीशन में पिन पॉइंट प्यूपिल होंगे, कौन से कंडीशन में फिक्स्ड प्यूपिल्स होंगे, कौन से कंडीशन में डायलेटेड होंगे. सो ऑल वी हैव स्टडीड इन द नर्वस सिस्टम. डिटेल में उस चैप्टर में है. This component of neurological examination may be performed during assessment of eye. Pupils हमें पता है ये न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में भी आता है और इन आई में भी हम चेक कर सकते हैं. Next, we are assessing the motor function of whole body. So, assess the muscle tone, including strength and equality. Assess for voluntary and involuntary movements and purposeful and non-purposeful movements. हमें मसल की टोन चेक करनी है, मसल की स्ट्रेंथ भी चेक करनी है और इक्वलिटी भी चेक करनी है कि दोनों आर्म्स में इक्वल स्ट्रेंथ होनी चाहिए. एक आर्म वीक होगा, फॉर एग्जांपल हेमीपैरेसिस हो जाएगा, सो एक हाथ में वीकनेस होगी, एक हाथ में नहीं होगी. सो द स्ट्रेंथ शुड बी इक्वल ऑन द बोथ ऑफ द साइड्स. सो वो सब चेक करना है. फिर वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स चेक करनी है. व्हाट इज वॉलंटरी मूवमेंट्स? जो हम हमारे हिसाब से कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वॉलंटरी. एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट दैट आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल. सो पेशेंट को ब्रेन डैमेज होगा, सो देयर माइट बी चांसेस ऑफ इनवॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स. जो पेशेंट नहीं कर रहा बट ड्यू टू द डैमेज इन द ब्रेन वो इनवॉलंटरी हो रही है. सो वी हैव टू असेस फॉर वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स. पर्पसफुल एंड नॉन पर्पसफुल मूवमेंट. पर्पस से अगर हम क्लाइंट को ऐसे बोल रहे हैं कि टेक दिस, सो वो पर्पसली ऐसे मूव कर रहा है. और समटाइम्स नॉन पर्पसफुल, विदाउट एनी पर्पस देयर आर मूवमेंट्स. सो यू हैव टू चेक ऑल these things. This component of neurological examination may be performed during assessment of musculoskeletal. मोटर फंक्शन और musculoskeletal में भी चेक कर सकते हैं. Next is cerebellar function. So what is said? So motor gait as the clients walk in the straight line, heel to toe, that is also called as tandem walking. अभी पेशेंट का गेट हमें चेक करना है. कैसे चेक करोगे? सेरेबेलर फंक्शन है, सेरेबेलम, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? वो क्या कंट्रोल करता है? गेट ने पोस्टर. यस, पोस्चर बैलेंस गेट. सो हमारा सेरेबेलम है वो पोस्चर बैलेंस में हेल्प करता है. सो सेरेबेलर फंक्शन के लिए हमें पेशेंट का बैलेंस ही चेक करना पड़ेगा. सो व्हाट वी कैन डू, हमें पेशेंट का गेट असेस करना है. कैसे करोगे? सो पेशेंट को बोलना है कि स्ट्रेट लाइन में वॉक करना है, जस्ट लाइक दिस. पेशेंट एक पैर रखेगा, फिर दूसरा पैर उसके ही आगे रखना है. ऐसे हम नॉर्मली ऐसे वॉक करते हैं, बट वी हैव टू टेल द पेशेंट टू वॉक लाइक दिस. हील टू टो, एक पैर का टो होगा तो दूसरे पैर की हील होगी, फिर दूसरे पैर के टोस है तो पहले वाले पैर की हील होगी. सो इन अ स्ट्रेट मोशन ऐसे लेग्स रख के पेशेंट को वॉक करवाना है और उसका गेट देखना है कि पेशेंट बैलेंस कैसा है. उसको टेंडम वॉकिंग भी बोलते हैं. वी हैव टू आस्क द पेशेंट टू डू द टेंडम वॉकिंग. सो टेंडम वॉकिंग इज हील टू टू वॉक. रोम्बर टेस्ट हमें चेक करना है. व्हाट इज दैट रोम्बर टेस्ट? वी हैव ऑलरेडी Okay, online students, what is Romberg test? We have already completed in vestibular assessment. ફોર બેલેન્સ ચેક કરવા માટે પેશન્ટને એક સ્ટ્રેટ લાઈનમાં ચાલવાનું કહેવાનું, હાથ ઉદાસ નહીં. Oh, we are not asking the patient to walk in Romberg test. In Romberg test, we are not asking the patient to walk. हम पेशेंट को सिर्फ एक ही जगह पर स्टैंड करने के लिए बोलेंगे. द लेग्स शुड बी नियरर टू ईच अदर. ऐसे ब्रॉड लेग्स करके नहीं, दोनों लेग्स ऐसे साथ में करके खड़ा रहना है. दोनों हाथ ऐसे फ्रीली छोड़ देना है. पेशेंट कैन नॉट पुट देयर हैंड्स इन अ स्ट्रेट मोशन. ग्रेविटी के अगेंस्ट ऐसे फ्रीली पेशेंट को छोड़ देना है. और पेशेंट हैज टू क्लोज देयर आईज, आंखें बंद करनी है. इफ देयर इज अ लिटिल बिट स्वे in the moment, so it is normal, but patient ज्यादा sway कर रहा है, ऐसे ज्यादा पूरा हिल रहा है, so it indicates. So what is, how you will write regarding Romberg's test? पॉझिटिव्ह रोम्बर्स. Positive Romberg's test, so it is abnormal. The Romberg test should be negative. Okay, so client is asked to stand with a feet together. दोनों पैर ऐसे साथ में रख के खड़े रहना है. And the arms at the sides पे ऐसे आर्म्स रखना है, नॉट स्ट्रेट, ऐसे साइड्स में फ्रीली छोड़ देना है. क्लोज द आईज एंड होल्ड द पोजीशन. आंखें बंद करके वो पोजीशन में ही खड़े रहना है. नॉर्मली द क्लाइंट कैन मेंटेन द पोस्चर एंड बैलेंस. नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स वैसे खड़े रह सकते हैं, तो जिसका सेरेब्रल फंक्शन इंपैर्ड हो गया है, जो बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे, वैसे स्वे करेंगे और दे कैन फॉल डाउन ऑल्सो.
So that indicates a positive Romberg test. If appropriate, ask the client to perform a shallow knee bend on or to hop in the place one leg and then the other leg. दूसरा बैलेंस फंक्शन टेस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, देयर आर 3 टेस्ट. एक तो पहले आपने हील टू टो और टेंडम वॉकिंग करवाया, रोम्बर्ग टेस्ट किया. देयर इज अनदर टेस्ट, उसमें आप क्या बोलोगे, क्लाइंट को ऐसे थोड़ा सा बैंड डाउन होने के लिए कहना है, नी से थोड़ा बैंड होना है और बैंड होते हुए ऐसे खड़े रहना है. सो कितनी देर तक पेशेंट ऐसे बैलेंस मेंटेन कर पाता है वो देखना है. और यू कैन डू वन थिंग, एक पैर पर हॉपिंग करानी है, एक पैर पर खड़े रहना है. लाइक हम एक पैर पर ऐसे खड़े रहते हैं ना, सो फर्स्ट लेफ्ट लेग देन राइट लेग, ऐसे एक बार बारी बारी से एक पैर पर पेशेंट को हॉपिंग करना है. सो यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बैलेंस इन द पेशेंट. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. यस. ओके. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन. अभी सारे मसल मूवमेंट्स की, सारे बॉडी की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है कि नहीं वो हमें चेक करनी है. वी हैव टू असेस द कोऑर्डिनेशन. So assess by asking the client to perform rapid alternating movements of hands. Example, turning the hands over the patting the knees continuously. What is that? दोनों मसल मूवमेंट्स का कोऑर्डिनेशन है या नहीं, सो वो चेक करना है. कोऑर्डिनेशन चेक करने के लिए हमें रैपिड ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट्स करवानी होगी, जस्ट लाइक दिस. आप पेशेंट को क्या बोल सकते हो कि पेशेंट को स्टैंड होना है पोजिशन में, राइट हैंड राइट नी पे, लेफ्ट हैंड लेफ्ट नी पे, और ऐसे ऑपोजिट ऐसे करते रहना है. पेशेंट ऑपोजिट मूवमेंट्स करेगा, पहले राइट नी पे हैंड रखेगा फिर लेफ्ट नी पे. तो लेफ्ट हैंड का जो लेफ्ट नी था उसको राइट हैंड पे, ऐसे ऑपोजिट मूवमेंट्स करनी है. कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स है तो पेशेंट इजीली कर पाएगा, जो हम कर सकते हैं. अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो पेशेंट वो जजमेंट ही नहीं ले पाएगा, पेशेंट नहीं कर पाएगा. देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज ऑल्सो जस्ट लाइक दिस, ऐसे करना होता है. सो दिस आर द कोऑर्डिनेशन मूवमेंट्स. सो ये सब ऐसे रैपिड मूवमेंट्स हम तुरंत चेंज करवाते हैं. ये हाथ में पहले 5 था, ये हाथ में 1 था, फिर नाउ दिस. सो हेल्दी इंडिविजुअल्स कर सकते हैं, जिसको प्रॉब्लम है वो नहीं कर सकते. सो वी आर जस्ट चेकिंग द कोऑर्डिनेशन. The nurse asks the client to touch the nurse's finger, then their own nose. The client keeps the eye open and the nurse moves the finger to the different spots to ensure that the client's movements are smooth and accurate. दूसरा टेस्ट क्या है कोऑर्डिनेशन चेक करने के लिए? नर्स पेशेंट को बोलेगी कि आपको मेरी फिंगर, दिस इज द फिंगर ऑफ नर्स, दिस इज द फिंगर ऑफ पेशेंट. सो पेशेंट को नर्स की फिंगर टच करनी है, फिर नोज, फिंगर नोज, फिंगर नोज. और उस टाइम पर नर्स क्या करेगी, वो भी अपनी हैंड मूवमेंट करेगी. सो ऐसे ऐसे पेशेंट को फ्रीक्वेंटली दोनों टच करना है. पेशेंट कंफ्यूज हो जाएगा तो 2 टाइम्स नोज टच कर देगा या 2 टाइम्स फिंगर टच कर देगा. सो वी हैव टू चेक द कोऑर्डिनेशन. नेक्स्ट इज हिल टू शीन टेस्ट. 3 तरह से हम कोऑर्डिनेशन चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट इज हिल टू शीन टेस्ट. व्हाट इज दैट? उसमें आप कोऑर्डिनेशन कैसे चेक करोगे? सो assist the client into a supine position, then ask the client to place the heel on the opposite knee and run it down the shin. Normally the client can move down the shin in a straight line. Patient को ऐसे supine position दे देनी है. Assume this, these are the legs of patient. ये patient के 2 legs है, राइट लेग एंड लेफ्ट लेग. फिर पेशेंट को क्या बोलना है कि जो लेफ्ट राइट लेग है उसकी हील से ये नी है. फॉर एग्जांपल, दिस इज माय लेग, दिस इज नी एंड दिस इज द फुट. सो पेशेंट को ऐसे एक लेग से नी पर पैर रखना है और उसको स्ट्रेट ऐसे मूव करना है. अगर हेल्दी इंडिविजुअल होगा सो कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा. फिर दूसरे पैर से ऐसे करना है. सो पैर से हमें दूसरे पैर की नी पर पैर रख के ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव करना है अलोंग द टिबिया. If the coordination is proper, the patient can do this test very well. If there is impaired coordination, patient ऐसे move नहीं कर पाएगा. Understood? Understood? Heel to shin test? Yes. Yes, Yes ma'am. or no? Okay. If you are not getting it, you can also write. Everyone, please write it on Google. Heel to shin test. Right now. Just write it down. Heel to shin test. Can you see this image? Yes or no? Yes, ma'am.
हाँ, so Yes, this ma'am. is how patient has to move the leg from knee to foot. Straight line में patient को move करना है. So that is heel to shin test. Next is sensory function. अभी patient का हमें sensation भी check करना है. So how you will assess the sensation of the patient whole in the whole body, all over the body you have to check the sensation. So first is sensation of pain. Pain का sensation हम check करेंगे. How? So assess by applying an object with a sharp point and one with a dull point to the client's body in random order and ask the client to identify the sharp and dull feelings. हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक शार्प है और एक डल है, बहुत शार्प नहीं है, और पेशेंट की आईज क्लोज कर देनी है. पेशेंट आईज ओपन करके प्रॉपर आंसर नहीं दे पाएगा. देयर वुड बी अनफेयर और रॉन्ग आंसर्स. सो पेशेंट को आईज क्लोज कर देनी है और रेंडमली शार्प ऑब्जेक्ट और डल ऑब्जेक्ट ऑल ओवर द बॉडी आप कहीं पे भी टच कर सकते हो. फिर आपको पेशेंट को पूछना है कि आपको शार्प ऑब्जेक्ट टच किया था या डल ऑब्जेक्ट. सो कहाँ पे टच किया और कहाँ पे शार्प था, कहाँ पे डल था. If patient is guessing right answer, it means the patient is having correct sensation of pain. Understood? Yes. Yes. Next is light touch. How you will check the light touch? So brush a piece of cotton over the client's skin at various location in random order and ask the client to say when the touch is felt. पेशेंट की आईज क्लोज करवा दोगे आप और कुछ भी सॉफ्ट लाइक कॉटन पैड है या फिर कोई क्लोथ है, कुछ भी सॉफ्ट चीज आप रखोगे और रैंडमली कहीं पे भी ऐसे टच करोगे क्लाइंट को, और क्लाइंट को पूछना है कि आपको जब भी सेंसेशन फील हो कि कुछ टच हुआ, यू हैव टू टेल मी यस मुझे यहाँ पर टच हुआ. सो यू कैन आइडेंटिफाई कि पेशेंट इज हैविंग कंप्लीट सेंसेशन ऑफ लाइट टच. अंडरस्टूड? Yes. नेक्स्ट इज पोजिशन सेंस. पेशेंट की पोजीशन कौन सी है वो करनी है. सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज काइनेस्थेशिया. काइनेस्थेशिया नॉर्मल है या एबनॉर्मल है वो टेस्ट करना है. सो मूव द क्लाइंट्स फिंगर और टो अप एंड डाउन एंड आस्क द क्लाइंट which way it has been moved. This tests the client's ability to perceive the passive movement. क्लाइंट्स की आंखें बंद है, आप क्लाइंट की फिंगर पकड़ के ऐसे लेफ्ट राइट अप डाउन करोगे. पेशेंट को आंखें बंद रखनी है और बोलना है कि उनकी फिंगर लेफ्ट मूव हुई, राइट मूव हुई, अपवर्ड, डाउनवर्ड, कौन सी डायरेक्शन में मूव हो रही है उनकी फिंगर, वो आंखें बंद करके उन्हें पता लगाना है. जो पेशेंट हेल्दी है वो तो इजीली आइडेंटिफाई कर देंगे कि इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन, पर जिनको प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट इज स्टीरियोग्नोसिस. व्हाट इज दैट? स्टीरियोग्नोसिस द टेस्ट द क्लाइंट्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन द हैंड्स. स्टीरियोग्नोसिस में क्या होगा? पेशेंट आंखें बंद रखेगा और आप पेशेंट की आंखें बंद करके उसके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट दोगे. आफ्टर टचिंग दैट आंखें बंद करके पेशेंट आइडेंटिफाई करेगा कि दिस इज द पेन, दिस इज द मोबाइल फोन, एनी ऑब्जेक्ट, बट आंखें बंद करके वो टच करके ही पता चलना चाहिए कि दिस इज द ऑब्जेक्ट. अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज ग्राफेस्थेशिया. व्हाट इज दैट? ग्राफेस्थेशिया मींस टेस्ट द क्लाइंट एबिलिटी टू आइडेंटिफाई अ नंबर ट्रेस्ड ऑन द क्लाइंट्स हैंड. क्लाइंट को आंखें बंद करनी है, क्लाइंट का हाथ ऐसे हम ओपन करवाएंगे और उसके पाम पर हम कुछ भी नंबर लिखेंगे लाइक 5. पेशेंट की आंखें बंद है पर 5 लिखा तो पेशेंट विल टेल यू कि यस यू हैव रिटन 5. द नॉर्मली द चाइल्ड यूज्ड टू प्ले दिस गेम्स कि बैक में कुछ नंबर लिखते हैं और वो जो पर्सन है वो राइट गेस करेगा कि यू हैव रिटन 6, 5, 4 अल्फाबेट्स जो हम गेम्स प्ले करते हैं. सो दैट इज द ग्राफेस्थेशिया. यू हैव टू जस्ट ड्रॉ अ नंबर, ट्रेस अ नंबर. आप हाथ में भी कर सकते हो, बैक पे भी कर सकते हो, एंड यू हैव टू टेल द पेशेंट कि जो भी नंबर आपको लग रहा है कि व्हाट आई हैव रिटन, यू हैव टू टेल दैट नंबर. अंडरस्टूड? Yes. Okay. Next is 2-point discrimination. What is that? So the test the client's ability to discriminate two simultaneous pin prick on the skin. 2-point discrimination. एक ही साथ आप 2 प्रिक्स कर रहे हो, लाइक राइट हैंड में भी कर रहे हो और लेफ्ट हैंड में भी कर रहे हो, पर एक साथ आपने दोनों साइड टच किया, पर एक साइड शार्प था और एक साइड डल था, दोनों साथ में टच करवाया. सो पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है कि किस साइड शार्प हुआ, किस साइड डल हुआ. पहले में जो पेन था उसमें क्या था? हम रैंडमली पहले एक बार शार्प टच करवाया, फिर डल टच करवाया. वी आर नॉट टचिंग साइमल्टेनियसली, एक साथ हम नहीं कर रहे थे, बट अभी हम एक साथ करेंगे. सो पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हैंड में कौन सा टच था. अंडरस्टूड? Yes. डिस्क्रिमिनेट करना है पेशेंट को अभी. नेक्स्ट इज डीप टेंडन रिफ्लेक्स. हमने सेंसेशन चेक कर लिया सारा, अभी डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस कैसे है वो चेक करने हैं हमें.
So it includes the testing following reflexes: biceps, triceps, brachioradialis, patella and Achilles. सारे डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हमें चेक करने हैं, मेजरली बाइसेप्स, ट्राइसेप्स के, ब्रेकियोरेडियालिस के, पटेला और एकिलिस के, हम जो लेग्स में है उसके टेंडन रिफ्लेक्सेस हमें चेक करना है. लिम्स शुड बी रिलैक्स्ड. जब भी हम डीप टेंडन रिफ्लेक्स चेक करते हैं सो पेशेंट एकदम रिलैक्स होना चाहिए. स्ट्रेस्ड ऐसे कॉन्स्ट्रिक्टेड और वैसे पोजीशन में नहीं, एकदम रिलैक्स होना चाहिए. और ऑलवेज डीप टेंडन रिफ्लेक्स हम कैसे चेक करेंगे? कोई इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस? Hammer. हैमर से. We have to always check the deep tendon reflex through the hammer. Hammer से ही हम कर सकते हैं. We cannot check the deep tendon reflexes through our hands. So the tendon is tapped quickly with a reflex hammer, which should cause contraction of muscles. आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स जो है वो हैमर से ऐसे मसल्स पर ऐसे टैप करेंगे. जैसे ही टैप करेंगे, if the hammer is tapping, it cannot be accurately done with the help of finger, but assume that this is a hammer. जब भी आप ऐसे टच करोगे तो there will be a movement. जो यहाँ के ब्रेकियो रेडियलिस मसल्स है उसकी वजह से फिंगर्स के मूवमेंट्स कंट्रोल होती है. So if it is moving normally, then that is normal deep tendon reflex. अगर थोड़ा ही टैप करने से ज्यादा मूवमेंट हो रही, it indicates hyper reflex. If बहुत ही कम मूवमेंट हो रही तो it indicates hypo reflex. So normal मूव होनी चाहिए. So there is a grading. डीप टेंडन रिफ्लेक्स का ग्रेड्स है 0 to +4. So let's understand the grading of the deep tendon reflex. 0 means no response. आप टैपिंग कर रहे हो पर हाथ में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है. यू कैन सी कि अगर पेन से करूंगी तो देयर विल बी नो रिफ्लेक्स, पर आप हैमर से भी कर रहे हो फिर भी कोई रिफ्लेक्स नहीं है, तो दैट इज द 0 स्कोर. +1 means diminished, low, normal और occurs only with reinforcement. +1 ग्रेडिंग कैसे दोगे आप? सो आप हैमर से कर तो रहे हो टैप, पर जो रिफ्लेक्स है, जो मूवमेंट होनी चाहिए वो बहुत ही कम है, बहुत ही डिमिनिश्ड हो गया. समटाइम्स इट कुड बी लो नॉर्मल, कम है बट नॉर्मल कही जा सकती है. और अकर्स ओनली विथ रीइंफोर्समेंट. रीइंफोर्समेंट मींस आपने एक बार किया तो कुछ नहीं हुआ, 2-3 बार किया ना तो हुआ. So that is called as +1 grading. Understood? The reflex have become diminished. Understood? यस. Okay. +2 means average normal. अब हैमर से टैप कर रहे हो तो इट कुड बी एवरेज और नॉर्मल. एवरेज भी है, नॉर्मल भी है. +3 में क्या बोलोगे? ब्रिस्कर देन एवरेज. ब्रिस्कर मीन्स फास्ट, रैपिड. सो एवरेज से रैपिड है. जैसे ही आपने टैप किया तुरंत ही रिफ्लेक्स देखने को मिल गया फिंगर में. सो इट इज ब्रिस्कर देन एवरेज. मे इंडिकेट डिजीज, प्रोबेबली नॉर्मल. हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है. इट मे इंडिकेट डिजीज, शायद डिजीज हो भी सकता है या प्रोबेबली नॉर्मल भी हो सकता है. जस्ट ड्यू टू एनी रीजन पेशेंट के रिफ्लेक्सेस फास्ट हो गए. वी कैन नॉट completely diagnose कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो इट मे इंडिकेट डिजीज और इट मे बी नॉर्मल, बट द रिस्पॉन्स और द रिफ्लेक्स इज ब्रिस्कर, थोड़ा फास्ट है. +4 में क्या है? सो वेरी ब्रिस्क और हाइपर एक्टिव विथ क्लोनस इंडिकेटिव ऑफ डिजीज. अभी +4 रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा. इट मीन्स कि वेरी ब्रिस्क रिफ्लेक्स है. तुरंत ही ऐसे जैसे टैप करो तुरंत ही रिफ्लेक्स आ रहा है. सो बहुत ही फास्ट है, बहुत ही रैपिड है. वी कैन ऑल्सो से दैट द रिफ्लेक्स इज हाइपर एक्टिव with clonus. Clonus means अदर स्पाज्म. there is a phase tonic clonic. So what is that? जो spasm सीजर्स में टोनिक क्लोनिक फेज आता है ना, वैसे. सो हाइपर एक्टिव है और बहुत ही क्लोनस भी है. और उसमें हम पता कर सकते हैं कि देयर माइट बी अ डिजीज. इट कुड नॉट बी नॉर्मल. दो प्रोबेबिलिटी नहीं है दैट इट माइट बी अ डिजीज और इट कुड बी नॉर्मल. नो, इट इंडिकेट्स अ डिजीज. उसमें अभी पेशेंट को कोई डिजीज है, ये बात कंफर्म हो गई इफ द पेशेंट इज हैविंग +4 डीप टेंडन रिफ्लेक्स. अंडरस्टूड? यस. Okay. Next is plantar reflex. What is that plantar reflex? हमने when you are doing the assessment of neonate or newborn, so हम ये सब assessment करते हैं. plantar reflex, Dawley, Babinski और वैसे सारे reflex करते हैं. So let's study all about that reflex. So what is plantar reflex? Plantar reflex is a cutaneous or superficial reflex is tested with the pointed but not the sharp object. Plantar reflex से हमें कोई pointed object, just you can say कि this is pointed है but ये sharp नहीं है.
तो कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से जो शार्प नहीं होना चाहिए उससे आप टेस्टिंग करते हो. द सोल ऑफ द क्लाइंट्स फुट इज स्ट्रोक्ड फ्रॉम द हील up the lateral side and then across the ball of the foot to the medial side. पेशेंट की ये हील है. एडल्ट की बात हो रही है, नॉट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पीडियाट्रिक्स. पीडियाट्रिक्स में भी ये सारे रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एडल्ट. सो एडल्ट में ये पेशेंट की फुट है, सोल्स है. सो आप कोई भी ऑब्जेक्ट से या ऐसे फिंगर से भी कर सकते हो. सो पहले हील्स पर स्ट्रोक करना है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाना है. स्ट्रोक करके लेटरल और मिड लाइन की तरफ हील से चालू करना है और स्ट्रोक करते करते ऊपर ले जाना है. तो नॉर्मल हेल्दी प्लांटर रिफ्लेक्स में कैसी मूवमेंट देखने को मिलती है? Flex. यस, फ्लेक्स्ड हो जाएगी फिंगर्स. सो द नॉर्मल रिस्पॉन्स इज द प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ ऑल द टोज. जैसे ही आप ऐसे टैप करोगे सो पेशेंट के फिंगर्स ऐसे टोज सारे ऐसे फ्लेक्स्ड हो जाएंगे. सो दैट इज द नॉर्मल रिफ्लेक्स. अगर आप टैप कर रहे हो और ऐसे फैनिंग हो रहा है, डॉर्सीफ्लेक्शन हो रहा है, सारे फिंगर्स ओपन हो रहे हैं, सो इज इट इंडिकेट नॉर्मल? yes, it indicates abnormal. It is not normal. Normally adult में ऐसे flexion होना चाहिए, ना कि dorsiflexion. So the red important point is very important. Dorsiflexion of the great toe and fanning of other toes. એટલે કે उसका मतलब कि सारी फिंगर्स अभी ओपन हो रही है. So dorsiflexion of the great toe and fanning of other toes is also called as बेबिंस्की साइन. हमें पता है कि जो भी न्यूनेट होते हैं उसमें हम बेबिंस्की साइन चेक करते हैं. जैसे आप सोल्स को टच करोगे सारी फिंगर्स ऐसे ओपन हो जाएगी. So that is also called as Babinski sign. After firmly stroking the sole of the foot is abnormal in anyone older than 2 years and indicate the presence of central nervous system disease. 2 years का चाइल्ड है उसमें बेबिंस्की देखने को मिल रहा है, तो it indicates Normal. नॉर्मल. पर 2 इयर्स से कोई भी बड़ा है, 3 ईयर का चाइल्ड है, 4 ईयर का, और कोई भी एडल्ट है, उसमें आपको टैपिंग करने पर बेबिंस्की साइन देखने को मिल रही है, देन इट इज abnormal. It indicates कि the person is having problem with the central nervous system or central nervous disease. Understood? Yes. Yes, sir. Yes. Next is testing for the meningeal irritation. अभी meningeal irritation के लिए टेस्टिंग करना है. So there are two tests. Bruskin signs and Kernig sign. Tell me what is that? What is Bruskin signs and Kernig sign? We have already studied this in neurovascular system. આપણે નેક ફ્લેક્સ કરીએ તો સાથે સાથે લેગ બી ફ્લેક્સ થાય. So that is Kernig sign. નો Bruskin signs. Bruskin signs, yes. And Kernig signs. What is that? ही પણ ની બેન્ડ કરીએ તો જોડે જોડે બીજી સાઈડનો hip અને ની બેન્ડ થતો જોવા. Yes. So that is the Kernig signs. What does it indicate? Positive Bruskins and positive Kernig sign. What does it indicate? Meningitis. Meningitis. Yes, there is meningeal irritation due to meningitis or any inflammatory condition in the meninges. जो meningeal layers है उसमें problem है. So a positive Bruskin signs or Kernig sign indicates the meningeal irritation. Bruskin signs is tested with the client in a supine position. दोनों में supine position ही देनी है. The nurse flexes the client's head, gently moves the head to the chest. जो patient है उसको supine position देने के बाद हम जो नर्स है वो क्या करेगी, ऐसे पेशेंट का हेड आगे की तरफ फ्लेक्स करेगी टुवर्ड्स द चेस्ट. हमें नेक मूव करना है एंड देयर शुड बी नो रिपोर्ट ऑफ पेन और रेजिस्टेंस टू द नेक फ्लेक्शन. पेशेंट को कोई भी पेन नहीं होना चाहिए. वी नो कि मेनिंजियल लेयर है वो सारे हमारे हेड से लेके स्पाइन तक है, तो सारी बॉडी कंट्रोल में है उसके. अगर मेनिंजिस इरिटेटेड हो जाएगी तो पेशेंट की नॉर्मल मूवमेंट ऐसे नहीं होगी. तो जैसे ही हम हेड ऐसे मूव करेंगे पेशेंट को पेन होगा, या फिर वो रेजिस्ट करेगा, पेशेंट ऐसे मूव नहीं करेगा, बैक टू नॉर्मल होना चाहेगा. सो देयर मस्ट बी नो एनी पेन और रेजिस्टेंस. नहीं होना चाहिए पेन और रेजिस्टेंस when you are doing the neck flexion. A positive Bruskin signs is observed if the client passively flexes the hip and knee in response to the neck flexion and reports the pain in vertebral column. अगर पेशेंट को ऐसे मूव करोगे तो उसको पेन होगा, सो बॉडी ऑटोमेटिकली वो लेग्स मूव कर देगी, फ्लेक्स कर देगी, नी से लेग्स फ्लेक्स हो जाएंगे.
सो अगर नी फ्लेक्शन देखने को मिले, नी या हिप फ्लेक्शन, तो इट इंडिकेट्स द पॉजिटिव ब्रूस्किन साइंस। और पेशेंट पेन का रिपोर्ट करे कि पीछे पेन हो रहा है, डोंट डू दैट, आई एम हैविंग द पेन, सो इट आल्सो इंडिकेट्स positive Bruskin signs. Understood? Yes. Yes. Next is Kernick sign. Kernick sign is positive when the client flexes the legs at the hip and knee and complains of pain along the vertebral column when the leg is extended. जब आप क्लाइंट को सुपाइन पोजीशन दी है और यू आर एक्सटेंडिंग द राइट लेग, आपने पेशेंट का राइट लेग ऐसे एक्सटेंड किया है, तो उसकी वजह से जो दूसरा लेग है, लेफ्ट लेग है, वो ऑटोमेटिकली क्लाइंट फ्लेक्स कर देगा फ्रॉम द हिप एंड द नी, दोनों जगह से ऐसे फ्लेक्स कर देगा और पेशेंट पेन की कंप्लेन करेगा। सो व्हाट डज इट इंडिकेट्स? पॉजिटिव कर्निक साइन। आप एक लेग एक्सटेंड करोगे सो उसकी वजह से दूसरा लेग जो है वो फ्लेक्स हो जाएगा। और ब्रूस्किन साइंस में आप नेक फ्लेक्स करोगे सो उसकी वजह से दोनों लेग्स फ्लेक्स हो जाएंगे फ्रॉम द हिप एंड नी। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay. So that is the testing of meningeal irritation. For diagnostic test, different types of diagnostic test और neurological assessment वो हमने already nervous system में study किया है. Okay. So what is the client teaching you will give to the patient after doing the nervous system assessment? So the client should avoid exposure to environmental hazards. Example, insecticides and lead. हमें क्लाइंट को बोलना है कि जो भी एनवायरमेंटल हेजर्ड्स है उसका एक्सपोजर नहीं होने देना है, लाइक इंसेक्टिसाइड्स, वो सारे न्यूरोटॉक्सिक है, लेड एक्सपोजर भी न्यूरोटॉक्सिक है, सो ये एक्सपोजर्स अवॉइड करने हैं। हाई रिस्क बिहेवियर्स दैट कैन रिजल्ट इन हेड एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज शुड बी अवॉइडेड। पेशेंट को बोलना है कि ऐसे कोई भी हाई रिस्क बिहेवियर ना करे, लाइक एनी स्टंट और एनी रेसिंग, कुछ भी ऐसे बिहेवियर्स ना करें जिसकी वजह से हेड इंजरी और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के चांसेस है, तो सारे बिहेवियर्स अवॉइड करने हैं। Protective devices, example helmet and body pads should be worn when practicing a high risk behavior. अगर पेशेंट कोई हाई रिस्क बिहेवियर कर रहा है, लाइक ड्राइविंग और जंपिंग फ्रॉम एनीवेयर एल्स और डूइंग एनी स्टंट, तो पेशेंट को बोलना है कि प्रोटेक्टिव डिवाइसेस यूज करें, जस्ट लाइक हेलमेट्स एंड ऑल द बॉडी पैड्स, तो हाई रिस्क बिहेवियर की वजह से उसे प्रोटेक्शन मिल के रहे। सीट बेल्ट शुड ऑलवेज बी वर्न। वी हैव टू एडवाइस द पेशेंट व्हेनेवर यू आर ड्राइविंग ऑलवेज वियर अ सीट बेल्ट, सो उसकी वजह से जो जर्क मूवमेंट है, शेकिंग ऑफ द हेड और हेड इंजरी और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के रिस्क कम हो जाते हैं। अंडरस्टूड? Yes. Okay, so let's do a quick revision what we have completed today. So we have completed the assessment of only the neurological system. In that, we have to obtain the subjective data. You will ask certain questions to the patient to get the information that is called as subjective data. In objective data, which technique you will use? Okay, which techniques you will use? On description. Okay, any other answers? We cannot use certain techniques directly on neurological system. We have to do the assessment of various parts of the body. Like we can assess the cranial nerves, level of consciousness, pupils, motor function, cerebellar function, coordination, sensory function, and reflexes. While doing the assessment of all these things, we can use different types of techniques, not directly on the neurological system. Okay, and while doing the assessment of neurological system, you have to note the mental status, emotional status of the patient, which includes behavior, appearance, language ability, intellectual function, memory, knowledge, abstract thinking, association, and judgment. You have to note all these things in the neurological system assessment. Next, you have to check the vital signs. Check TPR BP. You cannot check the pain and it is not necessary because जब भी पेशेंट को कोई भी न्यूरोलॉजिकल और इंट्राक्रेनियल प्रेशर चेंज हो जाएगा, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी स्टेटस, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट उसमें चेंजेस होगा, टेम्परेचर में भी चेंज होगा। रेस्पिरेटरी स्टेटस डाउन हो जाएगा, पेशेंट विल एक्सपीरियंस ब्रेडिपनिया। व्हाई? बिकॉज द रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर लोकेटेड इन द ब्रेन, उसकी वजह उस पर कंप्रेशन हो रहा है, सो रेस्पिरेशन कम हो जाएगा, सो अल्टीमेटली SpO2 विल बिकम लो,
So from this you can identify. So vital signs आपको चेक करने हैं. Cranial nerve assessment करना है. You have to assess each and every cranial nerve. Olfactory nose के लिए है. Smell assessment करना है. Optic vision के लिए है. So आपको vision assess करना है. All cranial nerve 3, 4 and 6 oculomotor, trochlear and abducens are for oculo eye movement and pupil movement. So आपको वो सब चेक करना है. Pupil movements कैसी है, eye movements कैसी है. Trigeminal nerve फेस के सेंसेशन के लिए है और मोटर फंक्शन के लिए है. तो उसके लिए आपको चेक करना है. पेशेंट का जो टेस्ट है इन फ्रंट टंग कैसा है, एंटीरियर पोर्शन ऑफ द टंग, सो वो सब वहां पे चेक करना है. फेशियल नर्व में एंटीरियर टेस्ट होगा, नॉट इन ट्राइजेमिनल. और फेशियल नर्व में मूवमेंट्स होगी. ट्राइजेमिनल में सेंसेशन होगा ऑन द फेस एंड फेशियल नर्व में मूवमेंट ऑफ द फेस. सो वो हमें चेक करना है. वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व में पेशेंट का हियरिंग चेक करना है एंड पेशेंट का बैलेंस. इफ हियरिंग इज इम्पेयर्ड इट इंडिकेट्स प्रॉब्लम विद द वेस्टिब्यूलर पोर्शन. Cochlear. 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 And the problem with the balance, it indicates the problem with vestibular portion. Okay. So you have to assess all this. Next, you have to assess the glossopharyngeal nerve, vagus nerve, spinal accessory nerves, hypoglossal nerve. You have to do the assessment of each and every cranial nerve. Then you have to assess the level of consciousness. लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आपको क्लाइंट के बिहेवियर से ही पता चले जाएगा, जीसीएस से भी पता चलेगा, क्लाइंट से बात करने से पता चलेगा, क्लाइंट के बिहेवियर और कन्वर्सेशन में अप्रोप्रिएटनेस है कि नहीं उससे भी आपको लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पता चलेगा. और लाइटली टचिंग द क्लाइंट से भी पता चलेगा. बट बिफोर टचिंग द क्लाइंट मेक श्योर यू आर कंसीडरिंग द क्लाइंट कल्चर. नेक्स्ट प्यूपिल टेस्ट करना है. प्यूपिल की साइज कैसी है, इक्वलिटी कैसी है, रिएक्शन टू लाइट कैसा है, अकोमोडेशन कैसा है, वो सब हमें प्यूपिल्स में चेक करना है. दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द एग्जामिनेशन ऑफ आई. मोटर फंक्शन वी हैव टू चेक द पेशेंट. मोटर फंक्शन में मसल की टोन कैसी है, स्ट्रेंथ कैसी है, दोनों तरफ इक्वल स्ट्रेंथ है या नहीं वो चेक करना है. वॉलंटरी इनवॉलंटरी मूवमेंट, पर्पसफुल एंड नॉन पर्पसफुल मूवमेंट्स है कि नहीं चेक करना है. दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन एग्जामिनेशन ऑफ मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम. सेरेबेलर फंक्शन चेक करना है. सेरेबेलर फंक्शन अगर इनअप्रोप्रिएट होगा तो देयर विल बी प्रॉब्लम इन बैलेंस. And posture. Yes, there will be problem in gait, posture और balance. So आप कैसे चेक कर सकते हो? So first is heel to toe walking, also called as Tandem walking. tandem walking. पेशेंट को tandem walking करवाने से उसका गेट कैसा है, ऐसे लड़खड़ा रहा है पेशेंट, बैलेंस कैसा है वो पता चलेगा. नेक्स्ट इज रोमबर्ग टेस्ट. we can assess the balance by performing Romberg test. And third, पेशेंट को ऐसे नी बैंड करके खड़े रहना है या फिर पेशेंट एक पैर पर हॉप कर सकता है. सो दिस आर द टेस्ट टू आइडेंटिफाई द सेरेबेलर फंक्शन. फिर हमें कोऑर्डिनेशन चेक करना है. पेशेंट का कोऑर्डिनेशन कैसे चेक कर सकते हैं? सो कोई भी रैपिड मूवमेंट्स करवानी है, जस्ट लाइक दोनों हाथ दोनों नी पर ऐसे ऑपोजिट मूवमेंट्स में मूव करवा के हम कर सकते हैं. सेकेंड, पेशेंट की फिंगर और रैपिडली दोनों पोजीशन ऐसे चेंज करनी है और नर्स भी उसकी फिंगर की पोजीशन चेंज करेगी. सो पेशेंट को अलर्ट रहना है कि इस पोजीशन पर है, इस पोजीशन पर. समटाइम्स कैसा होगा कि पेशेंट, नर्स ने फिंगर यहाँ पर रखी थी और पेशेंट ने ऐसे फिंगर टच की, नोज टच किया, फिंगर टच की, नोज की, फिर नर्स ने ऐसे फिंगर हटा दी, दूसरी जगह पर कर दी, तो भी नर्स पेशेंट गलती से उस जगह पर चला जाएगा. तो इट इंडिकेट्स कि पेशेंट हैज नॉट कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स. अगर जो हेल्दी इंडिविजुअल है तो नर्स फिंगर मूव करेगी तो पेशेंट उसी तरफ जाएगा, नॉट to the original position. So we have to check the coordination. Third test है to check the coordination is heel to shin test. उसमें एक पैर की heel दूसरे पैर के नी पर रखे straight हमें move करना है. So if the patient can move it straight, the patient's coordination is well. Next हमें sensory function test करना है. So we have to assess the pain sensation. एक sharp object और एक dull object randomly कहीं पे भी बॉडी पर हमें प्लेस करना है और पेशेंट को बोलना है कि आपको कुछ शार्प टच हुआ या कुछ डल टच हुआ. लाइट टच, एकदम लाइट लाइक कॉटन और कुछ भी पीस ऑफ क्लोथ से, कुछ भी लाइट चीज हो उससे टच करना है पेशेंट को. यू कैन ऑल्सो यूज द सॉफ्ट ब्रश ऑल्सो. सो उससे हमें पेशेंट को टच करवाना है रैंडमली कहीं पर भी पूरी बॉडी पर और पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी जगह पे टच हुआ. नेक्स्ट इज पोजिशन सेंस, दैट इज काइनेस्थेशिया.
हम पेशेंट का हैंड और फिंगर राइट लेफ्ट अप डाउन मूव करेंगे। पेशेंट को आंखें बंद करके गैस करना है कि कौन सी तरफ मूव हो रहा है। नेक्स्ट इज स्टीरियोग्नोसिस। उसमें पेशेंट को आंखें बंद करवा के कोई ऑब्जेक्ट देना है और पेशेंट को आंखें बंद करके आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है पेशेंट की हाथ में। नेक्स्ट इज ग्राफिस्थेशिया। ग्राफिस्थेशिया में पेशेंट की आंख बंद करवा के हम हाथ पे भी कुछ नंबर ट्रेस कर सकते हैं और ऑन द बैक, और पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर नर्स ने ट्रेस किया। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन में क्या करना है, एक साथ 2 पिन से हमें पेशेंट को टच करना है, एक होगी शार्प और एक होगा डल, और पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से साइड पे शार्प टच हुआ, कौन से साइड पे डल टच हुआ। सो पेशेंट को डिस्क्रिमिनेट करना है 2 पॉइंट में। नेक्स्ट इज डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस कौन से रिफ्लेक्स हम ज्यादा मोस्ट कॉमनली चेक करते हैं, सो बाइसेप, ट्राइसेप्स, ब्रेकियोरेडियलिस, पटेला एंड एक्यूलिस। उसमें हैमर की जरूरत पड़ेगी, दैट इज द रिफ्लेक्स हैमर। विदाउट दैट वी कैन नॉट चेक द डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। देयर इज अ स्कोरिंग 0 to +4। 0 में देयर विल बी नो रिस्पॉन्स, +4 में देयर विल बी डिमिनिश्ड और लो नॉर्मल, और समटाइम्स आप 2-3 बार करोगे तो यू कैन आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्स। +2 में द रिस्पॉन्स विल बी एवरेज और नॉर्मल। +3 में थोड़ा फास्ट हो गया है रिस्पॉन्स, brisker than the average. It may indicate disease or it may be normal. We cannot surely say that patient is having something problem or disease condition. +4 में क्या होगा, the reflex will be very brisk, the muscle tone become hyperactive or the reflex become hyperactive with clonus, and it surely indicates some disease condition. It cannot be normal. देन प्लांटर रिफ्लेक्स चेक करना है। प्लांटर रिफ्लेक्स में आप क्या चेक करोगे, जब भी आप पेशेंट को कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से ऐसे स्ट्राइक करोगे ऑन द हील और आप ऊपर की तरफ ले जाओगे तो देयर वुड बी फ्लेक्शन ऑफ द टोज। जो टोज है ऐसे फ्लेक्स हो जाएंगे। इफ इट इज डॉर्सिफ्लेक्शन इट इंडिकेट्स एबनॉर्मल। नॉर्मली फ्लेक्शन होना चाहिए सारे टोज का, नॉट द डॉर्सिफ्लेक्शन। डॉर्सिफ्लेक्शन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विच रिफ्लेक्स, Babinski reflex. It is normal Abnormal. under 2 years of Oh, child. 2 Yes, years. till 2 years it is normal. If the person is older than 2 years, the Babinski reflex is abnormal. That the Babinski reflex after 2 years should be gone. 2 साल के बाद Babinski reflex चला जाना चाहिए। Like जो डॉल आई है और वैसे सारे रिफ्लेक्सेस है, आफ्टर सर्टेन एज वो सब चले जाते हैं। अगर इफ इट इज स्टिल देयर so it indicates something is abnormal. So the red point you have to remember कि dorsiflexion या फिर जो fanning है that is also called as Babinski reflex और Babinski sign, तो वो 2 years तक normal है। older than 2 year it indicates the presence of central nervous system disease. Then हम meningeal irritation check करेंगे। meningeal irritation में we will check the 2 signs, that is Bruskin signs and Kernick signs. Bruskin signs में हम patient को supine position देंगे and we will flex the neck of the patient towards the chest. While doing the flexion of the neck, the patient will complain of pain and automatically the knees and hip will become flexed. So it indicates positive Bruskin signs and it indicates the meningeal irritation. What is Kernick sign? So we have to give the supine position to the patient and we will extend one leg. एक leg को हम ऐसे extend करेंगे, ऊपर करके extend करेंगे. So automatically the second leg or the other leg will become flexed from the knee or hip and the patient will complain of the pain. So it indicates positive Kernick sign and ultimately it indicates the meningeal irritation or the patient is having problem with the meninges. Understood? Yes. Yes. So what is the client teaching you will give? So you have to tell the patient to avoid all the environmental hazards which are very neurotoxic, जो ब्रेन के लिए अच्छे नहीं है, नर्वस सिस्टम के लिए अच्छे नहीं है, लाइक इंसेक्टिसाइड्स, लेड और वैसे कोई भी हाई रिस्क बिहेवियर्स हो जिसकी वजह से हेड इंजरी और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के रिस्क है, वो सारे हाई रिस्क बिहेवियर्स अवॉइड करने हैं। यू पेशेंट को एडवाइस देनी है कि ऐसे कोई बिहेवियर्स में एंगेज ना हो। इफ they have to do it because of their profession or anything, so advise the patient to use the protective devices like helmet or body pads कि जब भी आप high risk behavior कर रहे हो, and always advise the patient to wear a seat belt while they are driving. Any doubt till this? No.
No, ma'am. Okay. So see you tomorrow at 9 a.m. Thank you. Thank you. Thank you.